دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، حضرت خیریت؟ جی الحمدللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت، جیسے میں نے آپ کو کال کری، اب میں اس کمبخت کو کال کروں گا تو فون کی ریکارڈنگ میرے فون میں نہیں ہوگی، آپ کے میں ہوگی۔ میں نے ریکارڈ شروع کر دیا۔ بس ٹھیک ہے سر، میں اس کو لوں لائن پہ؟ ہاں لے لیجیے بالکل۔ اوکے حضرت، ایک منٹ۔ ٹھیک۔ لیکن اس میں کبھی کبھی آواز نہیں آتی ہے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، السلام علیکم۔ جی والسلام علیکم من اتباع الہدی۔ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ میں ابھی آ رہا ہوں، 10 منٹ ابھی آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ ابھی 10 منٹ بھی آ رہا ہوں۔ ارے آ رہا ہوں، رکو 1 منٹ بھی آ رہا ہوں۔ ہیلو جی جی، جی تو 1 سیکنڈ ذرا میں وہ لگا لوں، ذرا 1 سیکنڈ۔ جی جی لگا لیجیے، اشفاق رضا صاحب لائن پہ ہیں۔ جی حضرت آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے۔ جی حضرت ٹھیک، آپ کو آ رہی نا؟ جی الحمدللہ حضرت۔ جی یہ آ گئے حضرت فیضان صاحب۔ اشفاق صاحب آ گئے؟ جی جی بالکل حاضر ہیں۔ حاضر ہیں جی حضرت، اور خیریت ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ اور رسول کا کرم۔ چلیے، تو آپ کو تو بتا دیا ہوگا، عبداللہ صاحب نے آج ان کی کال بھی آئی تھی میرے پاس، ان سے بات نہیں ہو پائی گی۔ بتائیں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ جی مجھے ان سے بات ہوئی تھی، وہ آپ کی طرف سے بات کر رہے تھے، تو میں نے ان سے بتا دیا تھا۔ دیکھیے جی آپ کی طرف سے بات کر رہے تھے، اور میں نے ان سے بتا دیا تھا کہ دیکھیے جیسے کہ آپ کے مولوی اشفاق صاحب نے پہلے جو میرا چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا تھا کہ میں حفظ الایمان کی جو ہے مکمل عبارت، یعنی وہ جو 2-3 صفحے ہیں وہ پڑھ کر کے دکھاؤں گا، اور سوال اور جواب مکمل پڑھ کر کے دکھاؤں گا۔ نہیں ایک منٹ رک جائیے آپ تھوڑی دیر۔ آپ کا چیلنج یہ تھا کہ بریلی شریف کے تمام علماء کو میرا چیلنج ہے جن کا حفظ الایمان پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 12 سے لے کر صفحہ نمبر 14 تک عبارت پڑھ کر بتائیں۔ جی جی یہ چیلنج ہم نے آپ کا ایکسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ 12 سے 14 تک پڑھ کے دکھائیں گے؟ بالکل پڑھ کر دکھا دیں گے، کوئی حرج نہیں۔ تو پی ڈی ایف اب آپ سنیں، اگر آپ پی ڈی ایف اوپن کریں گے تو پیج نمبر 12 سے وہ جواب شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پیج نمبر پی ڈی ایف نہیں، ہمارے پاس ہارڈ کاپی ہے نا، ہارڈ کاپی میں پڑھو بھائی۔ آپ جواب پڑھیں نا، اب آپ خواہ کی باتوں کو الجھائیں تو اس سے کوئی فائدہ۔ اچھا آپ کو جواب سننا ہے تو جواب دیجیے نا، پھر آپ نے 12 کا کیوں بولنا تھا؟ آپ بولتے کہ جواب سے پڑھیں گے بھائی۔ جواب پی ڈی ایف اگر فائل آپ کھولیں گے تو صفحہ نمبر 12 پر جواب شروع ہے، ٹھیک ہے۔ پی ڈی ایف فائل کے اندر بھی صفحہ نمبر 12 پر جواب نہیں ہے۔ سنیے ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، سنیے۔ ارے یار میں فوٹو بھیج دیتا ہوں آپ کے پاس اگر آپ چاہیں تو۔ آپ ایکچولی میرا واٹس ایپ ابھی چل نہیں رہا ہے، پرابلم۔ اچھا واٹس ایپ آپ کا چل نہیں گیا ہے، آپ میرے کو نہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا پی ڈی ایف جو آپ 12 کا بول رہے ہیں، صفحہ نمبر 12 پر بھی پی ڈی ایف میں بھی یہ بات نہیں ہے جہاں سے جواب ہوگا یا 13 پر ہوگا، 13 پر بھی نہیں ہے، 12 سے 14 کے بیچ میں ہے۔ اچھا آپ کے پاس حفظ الایمان ہے؟ جی پی ڈی ایف فائل میرے پاس موجود ہے۔ اچھا پی ڈی ایف آپ کے پاس موجود ہے، پی ڈی ایف موجود ہے آپ کے پاس، تو پی ڈی ایف میں 12 پر کیا ہے آپ کے یہاں؟ بہرحال آپ کو جو سوال قائم کیا ہے، جو معاشرے تھانوی صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا، اس سوال کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سنیے دیکھیے، نہیں صفحہ نمبر 12 پر سوال نہیں ہے
आशफाक साहब बात सुन लीजिए, अगर आपको वक्त जाया करना है और बहस व मुबाहिसा ही नहीं, वक्त जाया कहाँ कर रहे हैं भाई, बात ही कर रहे हैं आपसे। आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? छोटी सी मेरी आपका जो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया, हम पूरा चैलेंज कबूल कर रहे हैं, फिर आप इधर उधर कर रहे हैं। ये भागने का लफ्ज आप एक तरफ रख करके और जरा एक आलिमाना गुफ्तगू करें। चलिए छोड़ दीजिए, जाहिलाना गुफ्तगू ना करें आप। नहीं जाहिलाना गुफ्तगू नहीं, आप एक आलिम है तो एक आलिम की तरह बात करें आप। तो आप बात से मुकर रहे हैं ना। हमने जो चैलेंज किया, हमने उस चैलेंज को कबूल किया, हम उस चैलेंज पर बोलने के लिए तैयार है। फिर आपने दूसरी बात ये कही कि मतलब जो है जवाब सुनाइए, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप जवाब पढ़ के सुनाएं और जो सवाल है वो सवाल पढ़ करके सुना दीजिए। पहले आप सवाल। अच्छा, जवाब भी सुनाए और सवाल भी पढ़े। अच्छा, सवाल भी सुनाए, जवाब भी सुनाए। उर्दू भारत है, उर्दू ना कोई दिक्कत नहीं है ना, अरबी भी पढ़ लेंगे। नहीं अरबी भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ये वो सवाल पढ़ दीजिए, अरबी भी पढ़ लेंगे। आप अरबी का टेंशन न लीजिए, आप हमारा टेंशन मत लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो बोलेंगे वो पढ़ देंगे हम। चलिए ठीक है, तो आप सवाल पढ़ दीजिए। चलिए, सवाल क्या है? पढ़िए। हाँ, आप अपने फोन में पीडीएफ फाइल खोल लीजिए। नहीं, पीडीएफ भी मेरे पास हार्ड कॉपी है, मैंने निकाल लिया है हार्ड कॉपी। ठीक है, बात है हार्ड कॉपी। पहले सवाल पढ़े, जवाब दी, क्या करें? पहले सवाल पढ़ के सवाल की वजाहत कर दीजिए कि सवाल किस चीज पर किया गया, किस उन्वान पर सवाल किया गया है। चलिए, ये तीसरा सवाल है, समझ में आ जाए। सुन लीजिए। तीसरा सवाल है, इल्म गैब की दो किस्में हैं। बिज़ात इस माना करके आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता, और बवासिता इस माना करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। ज़ैद का ये इस्तदलाल और अकीदा व अमल कैसा है? ठीक है, सवाल है, जवाब आ जाइए। जवाब है थोड़ी सी। हाँ, बोलिए आप जी, फरमाइए। अब आप मुझे बताएं कि साइल कौन है इसके अंदर? इसमें साहिल कौन है? साहिल कौन है? सवाल किया है, करने वाला कौन है? जी, सवाल करने वाले का यहाँ नाम नहीं दिया है। सवाल करने वाले का नाम जैद है, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, जैद नाम नहीं होता यार। जैद तो मतलब एक आम आदमी। यार जैद आप कुछ भी बात कर रहे हैं, बताएंगे आप आलिम है ना। बात सुनिए। जैद उसके अंदर आप पढ़ेंगे, जो अगर आप पढ़ेंगे जैद नाम उसने 3 सवाल किए हैं। ठीक है, उसमें तीसरा सवाल जैद जो है, जैद। अब सुने, देखिए बातों को आवाम की समझ में जैद किसको कहते हैं? जैद नाम होता है, बताए आप आलिम है। क्या होता है? जैद बिन साबित जैद नाम होता है, साहबी का नाम नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर मतलब वही मतलब है, यहाँ वही मतलब है, यहाँ वही मतलब है। चलिए, बहरहाल आपसे लोग मसला पूछते हैं। चलिए बोलिए आगे बोलिए। जैद नामी शख्स ने सवाल किया, उसके जरिए से सवाल हुआ कि जैद नामी शख्स ये कहता है कि इल्म गैब की 2 किस्में हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है ना, यही बोलिए ना। 2 किस्में हैं। अरे हमने पढ़ दिया यार, बोलिए। मैं भाई, जो सुनने वाले हैं उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना। सुनाइए, उनको भी तो समझ में आना चाहिए। बिज़ात बिल्कुल सुनाइए। आलिमुल गैब कौन है? इस माना से क्या लिखा है हमारी किताब में, बताइए। बाहर खड़े होकर बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, बाहर मत खड़े रहिए, आप किताब खोलिए, किताब खोल कर बात करिए। बाहर मत रहिए, अगर आ गई आप। 1 सेकंड वेट। किताब खोलिए, किताब में जो लिखा वो पढ़िए। 1 सेकंड वेट, में किताब ओपन कर लूँ सर। किताब ओपन कर। बाहर चले जाते हैं आप, गलत बात नहीं। हजरत, हमें नहीं मालूम था कि जैद नामी शख्स था कोई। 1 सेकंड ओपन सलूट, क्या नाम है? राहिल खान, खामोश रह जाओ, बात करने दो, गुफ्तगू हो रही है से, आपसे नहीं हो रही। ये कौन है भाई? राहिल खान, खामोश रहो। ये आपके अब्बू जान है। ये ओपन हो गई। ये कौन बदतमीज है जिसको आपने लाइन पे ले रखा है? आप बात ना करें, अशफाक रजा से बात हो रही है, बस वही काम। जी, चलिए, खलते मबस के लिए आप बोल रहे हैं, आप खामोश रहिए। आप बीच में कहीं से आपको इनवाइट नहीं किया गया था, आप कैसे आए? रुक जाइए। शर्त के अंदर ये नहीं था कि कोई आपकी तरफ से आदमी आएगा। सब्र करिए। शर्त में नहीं था कि आपकी तरफ से कोई आदमी आएगा। शर्त में नहीं था कि आपकी तरफ से कोई आदमी नहीं आएगा। इसको चुप कराइए, इसको चुप कराइए। ये बोलेगा नहीं बीच में, ये बोलेगा नहीं बीच में। ये कौन जाहिल आदमी बोल रहा था बीच में? ये जो जाहिल बोला था, जाहिल से कहिए जरा मुंह बंद करके रखे। अभी तो तमीज के दायरे में हूँ, लेकिन अगर अब ये बोला तो दायरे से बाहर चला जाऊंगा। तमीज के दायरे बात करनी है तो करो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। हजरत, ये खलते मबस के लिए लाया है इसको। राहिल, अगर तमीज के दायरे बात करो, खामोश रह जा। चल चुप रहे तो उसको खामोश करिए ना, आप उससे बुलवा क्यों रहे हैं? खामोश हो जाए, उसको खामोश करिए, बात करने दे बस। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ना। सुनिए जी, बिल्कुल अशफाक साहब इनको बोलिए। मैं बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ बोलिए। जी, मैंने किताब खोल ली है जी।
तो जैद के नजदीक क्या है, इल्म गैब दो किस्में हैं, ठीक है। तो एक सवाल आया है जैद नामी शख्स की तरफ से, वो कहता है कि बिज़ात इस माना से आलिमुल गैब खुदा ताला। इस माना क्या लिखा है, फिर से पढ़िए, एक मिनट फैजान साहब, फिर से पढ़िए इस माना। जी मैं फिर से पढ़ देता हूँ। बिज़ात इस माना से आलिमुल गैब, से कहाँ है वहाँ, से नहीं है वहाँ, से नहीं है वहाँ, से नहीं है वहाँ। आप किताब पढ़ रहे हैं, से नहीं है वहाँ, से पढ़िए भाई, से कहाँ से लाए आप? आके खोल के जरा देखें, ठीक है, आके से नहीं है वहाँ, और से नहीं है वहाँ, करने की नीयत से मसले को हल से नहीं है वहाँ। आप गलत पढ़ रहे हैं ना, आप किताब गलत पढ़ रहे हैं। आप इस माना कर है वहाँ लिखा है, इस माना कर PDF फाइल को। अच्छा, कर में और इसमें क्या फर्क आ गया? वो फर्क से मतलब नहीं, जो लिखा है वो पढ़िए, जो लिखा है वो पढ़िए, जो लिखा है वो पढ़िए। इस माना कर, चलिए आपकी मान, इस माना कर आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और का लफ्ज भी नहीं है इसमें, क्या है इस पर, और का लफ्ज भी नहीं है इसमें और का लफ्ज भी नहीं कर रहे हैं आप। खुलासे कलाम पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? इसमें और का लफ्ज भी नहीं है, आप अपनी तरफ से और बढ़ा रहे हैं। हो सकता है, जो किताब खुली है उसमें लफ्ज और मौजूद है, ठीक है। अच्छा, आप बात को अगर हल करना चाहते हैं तो मैं फिर कहूँगा कि आलिमाना गुफ्तगू करें। हाल ही तो कर रहे हैं यार, तुम किधर तो चल रहे हो आप। इस माना कर आलिमुल गैब अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं हो सकता। इस पर आपका क्या है? आपका नहीं, हमारा अकीदा क्यों पूछ रहे हैं आप? आपसे बात कर रहे हैं हिफ्ज़ुल ईमान की बोली पर, उस पर बात करिए ना। अभी सुने, ये इस पर एतराज है कि आपको, अरे इस पर एतराज है कि आपको थानवी ने जो गंदी और फोड़ बोली है, थानवी ने जो गंदी और फोड़ बोली रसूलुल्लाह की शान में बोली है, उस पर बात हो रही है, उस पर बात करिए। तमीज के दायरे में अगर बात करनी है तो बात करना, वरना यहाँ से दफा हो जाना। तमीज, बिल्कुल तमीज के दायरे में बात कर रहा हूँ मैं इतनी देर से, लेकिन आप बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। आप आइए जवाब पर, शान में गुस्सा, आप जवाब पर आइए, आप जवाब पर आइए, ठीक है, आप जवाब पर आइए, आप जवाब पर आइए, भागिए मत, भागिए मत, जवाब पर आइए, भागिए मत। मुझे मालूम था ऐसे भागोगे तुम। भागने दूंगा आज मैं तुम्हें, भाग तो रहे हो, बोलो, ठीक है ना। अभी सुनो, क्यों उलझा इतना? अवाम को ना उलझाओ, अवाम को ना। अरे कौन उलझा रहा है, अरे कौन उलझा रहा है, बताएं। तो बिज़ात, चलिए आगे बढ़ते हैं, इबादत की बात करते हैं। बिज़ात इस पूरा सवाल पढ़ने के बाद जवाब पर जो हमारा एतराज है, उस एतराज पर बात करिए। मैंने सवाल पढ़ दिया, आपके कहने पर आपको बात नहीं करनी, आपको आपके सवाल पर, मैं आपके कहने पर मैंने सवाल पढ़ दिया। आपने कहा सवाल पढ़ो, मैंने सवाल फौरन पढ़ दिया। आप जवाब पर आइए, बयान करें आप जैद का अकीदा। आप जवाब पर आइए, आप जवाब पर आइए, जवाब पर एतराज है हमारा। जब तक सवाल, हमारा एतराज सवाल पर नहीं है, हमारा एतराज जवाब पर है। हमारे आपकी जो बोली है, गंदी बोली जो लिखी है, आपके मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने जो गंदी बोली लिखी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में, उस पर हमारा एतराज है, समझे आप? उसी पर बताऊंगा, उसी पर। हाँ, अब हमने बहुत अदब से बोला है आपको। आपके मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने जो गंदी बोली हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से लिखी है, उसके ताल्लुक से बोल रहे हैं। मुजद्दिद ने लगाया है उसको, अभी मुंह हम साबित करेंगे ना, अभी साबित करेंगे हम कि क्या लिखा है। बिल्कुल, चलिए बोलिए, तमीज से अब और क्या तमीज, क्या अब और क्या तमीज करूँ, अब और क्या तमीज करूँ? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब बोल रहा हूँ, और क्या तमीज करूँ? सुने, अब आप ये बताइए, सवाल के अंदर मौलाना शफी थानवी साहब से सवाल किया गया, सवाल की वजाहत कर दें आप आवाम के सामने। चलिए वजाहत कर दीजिए इसकी। सवाल हुआ है, सवाल का जवाब दिया है, सवाल की वजाहत करिए ना आप, सवाल की वजाहत करिए ताकि आवाम को समझ में आए। फिर पता, अरे भाई जैद ने सवाल किया है कि इल्म गैब की दो किस्में हैं, बिज़ात इस माना कर के आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता, और बवास्ता इस माना कर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। जैद का ये इस्तदलाल और अकीदा व अमल कैसा है, पूरा सवाल है। अब इस पूरे सवाल का जवाब थानवी साहब ने क्या दिया है? हाँ जी, थानवी साहब ने जवाब क्या दिया, जवाब पर आइए। अरे भाई जवाब पर आइए, सवाल की वजाहत कर दीजिए ताकि अवाम की। सवाल की क्या वजाहत करूं, क्लियर तो लिखा हुआ है, क्या उर्दू नहीं आती आपको? मैं नहीं, ये आपकी अवाम, आपकी जाहिल अवाम जब तक गुमराह पड़ी है। इल्म गैब की दो किस्में हैं, ये एक शख्स है जिसका ये अकीदा है कि इल्म गैब की दो किस्में हैं, बिज़ात इस माना कर के आलिमुल गैब। एक मिनट यार, ये सुनिए, ये अकीदा मौलाना शफी थानवी साहब का है नहीं है, ये बताइए। अरे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने तो जवाब इस पर ये दिया है कि इल्म गैब की नफी कर दी ना उन्होंने। तो सवाल में अकीदा जैद का बयान किया जा रहा है ना, जैद का है, बिल्कुल जैद का है। तो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल जैद का अकीदा है, हमारा अकीदा ठीक है, ठीक है। तो जवाब जो है वो जैद के अकीदे पर दिया गया है ना।
इसका मतलब क्या सवाल जैद के अकीदे पर क्या जवाब दिया गया? अकीदे पर जवाब दिया गया है ना। हाँ, तो क्या जवाब दिया गया? जवाब पर आइए चलिए। अब मैं चलिए, आप वजाहत नहीं कर रहे तो मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ थोड़ी सी। अब आप 1-2 मिनट के लिए अगर खामोश रहेंगे तो मैं वजाहत कर देता हूँ सवाल की। बताएं। आपसे वजाहत नहीं, सवाल की वजाहत करेंगे, जवाब पर एतराज है, सवाल की वजाहत चल रही। चलिए अरे अभी बताइए ना, बताइए। ठीक है, तो सामने मैं सवाल की वजाहत करने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सवाल के अंदर जो सवाल किया गया है वो आलिमुल गैब पर किया गया है या हुजूर के इल्म गैब पर किया गया है। ये दोनों चीजें एक अलग अलग है। हुजूर का इल्म गैब अलग है और हुजूर आलिमुल गैब कहना एक अलग है। आलिमुल गैब क्या आप हुजूर को कहते हैं अशफाक साहब? बताइए, 2 मिनट बोलना है आपको, बोलिए। आप बोलिए, 2 मिनट बोलिए। जवाब दे देंगे तो की समझ में आ नहीं, आप 2 मिनट बोलिए, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आप लोगों का भी यही अकीदा है कि आप लोग हुजूर को आलिमुल गैब नहीं, आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं कहते। ठीक है, तो ज़ैद उसका अकीदा है कि बिज़ात इस माना से आलिमुल गैब अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं हो सकता। ये हम सब का अकीदा है। और बिल वास्ता यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने वही के जरिए से जो गैब का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया है, बिल वास्ता इस माना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। यानी ज़ैद जो वही के जरिए जो इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया उसकी वजह से भी, यानी बाज मुतलक उलूम गैबिया की वजह से भी ज़ैद का अकीदा है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहता है। तो सवाल ये है कि ज़ैद का अकीदा यानी बाज मुतलक इल्म गैबिया होने की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना ये सही है या नहीं है? ठीक है, हो गया, तो हो गया, आगे बढ़िए। चलिए अब बताओ क्या जवाब दिया था अलवी साहब ने इसमें? अब सुनिए, अब इसमें जवाब तो दीजिए यार, क्यों भाई? इसमें सवाल इल्म गैब पर हुआ है या आलिमुल गैब पर हुआ है? अब इतना बता दीजिए आप। ये जवाब दीजिए, जवाब क्या दिया था आदमी ने, बताइए। सवाल आप अभी वजाहत कर रहा हूँ मैं। आलिम है तो आलिमान गुफ्तगू करें, ये इस तरीके से अरे भाई ना करें। अरे भैया, तुमने सवाल 3-4 बार पढ़ लिया, 3-4 बार सवाल पढ़ चुके ना तुम। अब जवाब पर आ जाओ जरा। आप और आपके उलमा की समझ में आज तक सवाल ही नहीं आया ना, इसलिए मुझे 4 बार पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा चलो सवाल समझा दो, क्या सवाल है? सवाल इल्म गैब पर हुआ है या आलिमुल गैब पर हुआ है? अबे क्या दिए यार, चलिए सवाल जवाब बताइए। चलिए हुआ है, चले सवाल आलिमुल गैब पर उस बंदे ने कर लिया। अब थानवी साहब जवाब क्या दे, बताइए। ठीक है, सवाल आलिमुल गैब पर है, इल्म गैब पर नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? बोलिए, आगे बोलिए। तो सामने इन्होंने इस बात को मान लिया कि चलो इन्होंने सच को कबूल कर लिया। आज तक इन्हें सच कबूल नहीं करा था। अच्छी बात है कि इन्होंने सच कबूल कर लिया कि सवाल आलिमुल गैब कहे जाने पर है, इल्म गैब पर नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात पॉइंट की ये है कि जब सवाल ही इल्म गैब पर नहीं है तो हुजूर के इल्म को तशबीह देने वाला जो इल्जाम इन्होंने लगाया है वो सबसे पहले यहाँ से बातिल होता है। सबसे पहले यहाँ से बातिल। अच्छा बोली, अच्छा जवाब पर आए, जवाब पर आ जाए। अब आप जवाब पर, चलिए जवाब पर आइए। चलिए जी, पढ़ूं, मैं पढ़ूं? 1 सेकंड जरा, मैं पढ़ूं, निकालिए 1 सेकंड जरा वो करना जरा। अच्छा जी 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 यार, एक तो मेरे पास एयरफोन नहीं है अभी। ओहो, बड़ी परेशानी है। आप कभी बाहर भी रहते हैं, एयरफोन भी नहीं रहता है, बड़ी परेशानी है आपकी, क्या करें? भाई जी, आप जवाब पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे तो आप जवाब सवाल सोम पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा, जवाल सोम मतलब हाँ, मतलब गैब से मुराद इख्तिलाफात शरइया में वही गैब है जिस पर कोई दलील कायम न हो और उसके इदराक के लिए कोई बात। जरा धीरे धीरे पढ़िए ताकि आवाम की अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज इस बातों की बिल्कुल आराम से। मुतलक गैब से मुराद इख्तिलाफात शरइया में वही गैब है जिस पर कोई दलील कायम न हो और उसके इदराक के लिए कोई वास्ता और सबील ना हो। इसी बिना पर ला यालम। थोड़ी सी इसकी अरे रुकिए यार, देखिए एक चीज पर रुकिए, मैं पूरी बात कर लीजिए ना भाई। आवाम को है ना, पूरा जवाब नहीं, पूरा जवाब सुनिए, पूरा जवाब सुनिए, चलिए इससे कोई फायदा। आप पूरा जवाब सुनिए। नहीं, थानवी की बात मैं क्यों समझाऊंगा यार? थानवी बोला है उसकी बात मैं क्यों समझाऊंगा? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ क्या? यानी आपकी जब आपकी समझ में नहीं आई तो आपने यूं ही इल्जाम लगा दिया। नहीं, तो अशरफ अली थानवी ने जो जवाब दिया है वो अपने अकीदे के मुताबिक दिया, तो उसका जवाब का मैं क्यों समझाऊंगा? आपको समझाना, आप समझाते रहिएगा।
आपको जब समझाना आप समझाते रहिएगा, आई है नहीं आई है, आप जब समझाएंगे, आपको जब समझाना होगा आप समझाते रहिएगा। हमारा जो ऐतराज है उस ऐतराज पर आप हमें समझाइए ना। आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं इतनी देर से? 20 मिनट हो गए, यहाँ वहाँ भागते चले जा रहे हैं। भाग रहा हूँ मैं, कहीं नहीं भाग तो रहे, लगातार भाग रहे हैं यार। जब सुनेंगे लोग तो क्या कहेंगे, थू करेंगे कि यार देखो थानवी का चेला आया और भाग गया। जी जी, वो तो ही पता लग रहा है ना कि आपकी सलाहियत इतनी है, आपसे उर्दू इबारत की वजाहत तक नहीं हो रही है। वजाहत मैं क्यों करूंगा? थानवी की बोलिए मैं क्यों वजाहत करूंगा? अरे मैं इमाम अहमद रजा की बोलियां ला करके तुम्हारे सामने रखूंगा और कहूंगा वजाहत करो इसकी। तो ये बेवकूफी वाली बात है ना भाई। वो मेरे उलमा है, मेरा आलिम है, मेरे आलिम की वजाहत मैं करूंगा। तुम्हारा आलिम है, तुम्हारे आलिम की वजाहत तुम करोगे। मैं तुम्हारे आलिम की वजाहत क्यों करता बैठा रहूंगा भाई? जी जी, अभी क्या तुम करोगे वजाहत मैं करूंगा, गुस्ताखी तुम करोगे वजाहत मैं करूंगा, चोरी तुम करोगे वजाहत मैं करूंगा, जिना तुम करोगे वजाहत मैं करूंगा, लिखोगे तुम जिना वजाहत मैं करूंगा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बहुत अच्छी बात, वजाहत तुम करोगे ना। 2 सेकंड तो सामीन अभी बहुत अच्छी बात कही। तुम वजाहत पेश करो, तुम वजाहत पेश करो। तुमसे पूछ तो रहा हूँ सर, तुम जवाब में मुझसे कह रहे हो वजाहत पेश करो। अजीब आदमी हो यार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कही है सामीन। वजाहत आप पेश करिए। हमारा एतराज है, उस एतराज पर वजाहत आप पेश करिए। हमारी होगी वजाहत, हमारी होगी, इस बात को आप मान। हाँ, वजाहत आप पेश करेंगे। अगर एतराज हम करेंगे, हम अगर आपको कहेंगे कि आप चोर है तो आप वजाहत पेश करेंगे कि आप चोर नहीं है। अगर हम आपको कहेंगे कि आप जानी है तो आप वजाहत पेश करेंगे कि आप जानी नहीं है। हम अगर आपको कहेंगे कि आप लूटी है तो आप वजाहत पेश करेंगे कि आप लूटी नहीं है। हम अगर आपको कहेंगे कि आप झूठे हैं तो आप वजाहत पेश करेंगे कि हम झूठे नहीं है। समझे? वजाहत पेश करना आपकी जिम्मेदारी होगी, ना कि हमारी। हम क्यों देंगे आपकी जिम्मेदारी को? अजीब बात करते हैं यार इतनी देर से। मतलब जो तो बात इधर उधर घुमा रहे हैं। बात कहीं नहीं घूम रही है, बात अभी इबारत पर ही चल रही है। आपको कहाँ इबारत पर? अभी तक तो आप इबारत पर ही नहीं आए हैं। आप सवाल में घूमे पहले। जैद, आपको यही नहीं मालूम कि जैद किसको कहते हैं, अमर बकर किसको कहते हैं। आप कहते हैं जैद ने पूछा सवाल, जैद नाम है आपके नजदीक, आपका ये हाल है। कहाँ से पढ़े हुए पता नहीं। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी। अरे तो वो हजरत जैद ने पूछा था सवाल थानवी से। जैद नाम नहीं होता। तो हजरत जैद ने पूछा सवाल थानवी से। ये जैद कौन है? ये वही जैद है। ये जैद वो है जो सवाल में होता है। अरे ये जो सवाल में जैद बगैर अमर होते हैं ये वो है, ये वो जैद नहीं है। जैद नाम नहीं है उसका। अरे है, नाम है नाम। कहाँ का रहने वाला है पता भी देना था फिर उसका। क्योंकि जब जैद सवाल पूछता है तो पता भी देता है, जब नाम पूछता है तो जगह भी बताता है और तारीख भी बताता है। तो ये जैद कौन था? ये अपने ख्याल के अंदर इसने एक जैद को तैयार किया और बिला वजह में सवाल पैदा किया और बिला वजह में रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी वाला जुमला किया। और आप कहते वजाहत पेश करो। बात करते हैं यार। चलिए सुनिए जवाब, सुनिए जवाब, सुनिए जवाब, सुनिए कान खोल कर सुनिएगा आराम से जी। और आप भी आराम से पढ़िएगा ताकि खुद की भी बिल्कुल आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दि गैब इल्लल्लाह और वलौ कुंतु आलमुल गैब। अरे भाई आराम से पढ़िए। वलौ कुंतु अअलमुल गैब। हाँ, वलौ कुंतु आलमुल गैब। कुरान का तलफ्फुज़ क्या होता है? गैबा जब आप पढ़ोगे तो गैबा यहाँ पर रुक रहे हो आपकी, मतलब ये तो चल रहे हो, क्या कर रहे हो? तो गैब पढ़ोगे, गैबा पढ़ोगे। कुरान पढ़ेगा तो यहाँ कितनी आयत लिखी, जितनी लिखी उतनी पढ़ूंगा ना, कि ज्यादा पढ़ दूं थानवी की तरफ से? हाँ, हाफिज नहीं है क्या? हाफिज कितनी लिखी है इन्होंने? कितनी लिखी है इन्होंने? कितनी लिखी है वो बताओ। अरे भाई मैं जवाब पढ़ रहा हूँ तो जितना लिखा उतना पढ़ूंगा ना। अरे जितनी उन्होंने जवाब लिखा है, अरे भाई जितना उन्होंने लिखा है उतना जवाब पढ़ूंगा कि उससे ज्यादा पढ़ूंगा? पढ़िए। चलिए, वगैरह फरमाया गया है। और जो इल्म बवास्ता हो उस पर गैब का इतलाक मोहताज करीना है। तो बिला करीना मखलूक पर इल्म गैब का इतलाक मोहम शिरक होने की वजह से ममनू व नाजायज होगा। कुरान मजीद में लफ्ज़ राइना की ममानियात। अरे यार वो देखो समझाओ मत, मैं चल रहा हूँ ना, अभी आगे चलते जाओ। जवाब सुना रहा हूँ आपको, जवाब सुना रहा हूँ आपको, जवाब सुना रहा हूँ। जवाब नहीं, मुझे इस पर एतराज, मुझे इसकी इस बोली पर एतराज नहीं है। मुझे जिस बोली पर एतराज मैं वहाँ आ रहा हूँ, ठीक है? मुझे जिस बोली पर एतराज है मैं वहाँ आ रहा हूँ। मुझे जिस बोली पर एतराज है मैं वहाँ आऊंगा। मुझे जिस बोली पर एतराज होगा मैं वो बोलूंगा, ना कि पूरी किताब पढ़कर सुनाऊंगा आपको। समझे? थोड़ी होता है। मुझे जिस बोली पर एतराज होगा वो बोली बताऊंगा, उस बोली की वजाहत आप करेंगे। मैं पूरी किताब पढ़कर अगर रात भर सुनाता रहूंगा तो आपको तो हिफ्जुल ईमान हिफ्ज हो जाएगी। सारी गाड़ी ऊपर साथी चेक होते हुए क्या ये इबारतों में क्या करना कब छोड़ेंगे आप? किसने चोरी किया? कब छोड़ेंगे आप? अबे पूरी तो पढ़ रहा हूँ यार, एक एक लफ्ज पढ़ रहा हूँ ना।
تو بھائی وضاحت کریے نا اس کی, آپ کو خود سمجھ. وضاحت میں کیوں کروں گا؟ ابھی تو بولا چوری آپ کرو گے, وضاحت میں کروں گا. جواب کیا بیوقوف آدمی ہو یار, مطلب چوری تم کرو گے وضاحت میں کروں گا. پیج کا ہے یا ابھی چوری تم کرو گے وضاحت میں کروں گا. چوری کام تو سیدھا ٹھوک کے کہنا, پڑھ کے دکھا دو پوری عبارت وضاحت کے ساتھ. چوری تم ہے تو پڑھ کے تو دکھا رہا ہوں, وضاحت بیچ میں کیوں کود رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو تم؟ ارے پڑھ کر کے تو دکھا رہا ہوں, وضاحت کیوں کود رہے ہو بیچ میں؟ پڑھ کر تو دکھا رہا ہوں. تعبیر کی اردو عبارت تک نہیں پڑھ سکتے یہ. ارے پڑھ کر تو دکھا رہا ہوں, وضاحت کیوں سیکھ رہا ہوں اس کے اندر؟ کروں نا بھائی وضاحت کیوں, وضاحت میں کیوں دوں گا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیضان تم سے میری بات ہوئی, میں نے کہا چوری تم کرو, وضاحت میں کیوں کروں گا؟ ارے چوری کیوں کر رہے ہیں, ہماری کتاب آپ کے, تو چوری تم نے کیا نا, وضاحت تم کرو گے نا بھائی. وضاحت تم کرو نا, وضاحت تم کرو. چلو وضاحت کرتے جاؤ, چلو میں پڑھتا جاتا ہوں, تم وضاحت کرتے جاؤ. چلو میں پڑھتا جا رہا ہوں, چلو وضاحت کرتے جاؤ. میں وضاحت نہیں کر سکتا. میں کیوں بولوں؟ میں تمہاری وضاحت کیوں کروں گا؟ میں تمہاری وضاحت کیوں کروں گا؟ میں تمہاری وضاحت کیوں کروں گا؟ ارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی کتابیں میں تمہارے سامنے رکھوں گا اور کہوں گا اس کی وضاحت کرو, تو وضاحت تم کرو گے؟ بالکل کریں گے. ہم کیا بے وقوفی والی بات ہے؟ بے وقوفی والی بات ہے تمہاری یہی. ارے میں کہہ رہا ہوں کوئی, ارے جب اعلیٰ حضرت کی کتاب اگر آپ کے سامنے میں رکھوں گا, اعلیٰ حضرت کی کتاب میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ آپ پڑھتے جاؤ, اس کی وضاحت کرتے آپ کرو گے؟ ہاں میں کروں گا, اس کی وضاحت میں اعتراض کروں گا. چلیے تو پھر تمیز ایمان کی وضاحت کریے آپ. چلیے پھر تمیز ایمان کی وضاحت کر دیں پہلے, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. وہ ٹاپک سیٹ کر کے بات کریں گے. آپ کیوں بھاگ کیوں رہے یار ادھر ادھر؟ پھر بات کرو نا سیدھے, تم کو بھاگ رہے ہو ادھر ادھر؟ اور سنو, تو ٹاپک سیٹ کر کے بات کرو گے تو بات کرو نا, اس پر تم ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ عجیب آدمی ہے یار. ابھی میں نے اعتراض نہیں کیا, ابھی تو میں نے اعتراض نہیں کیا, ابھی تم اعتراض کر رہے ہو نا. اعتراض میرا جس عبارت پر ہے میں اس کی وضاحت بھی کروں گا اور اس کے بارے میں بات بھی کروں گا. سنو سیدھی سی بات ہے, آپ یہ کہہ دو میں اردو عبارت کی وضاحت نہیں کر سکتا, میں کر دوں گا. میں اردو عبارت, ارے میں تھانوی کی عبارت کی وضاحت کیوں کروں گا؟ میں چور کی عبارت, اس کی چوری اس سے کرا, میں کیوں بتاؤں گا کہ اس سے چوری کیوں کیا؟ سمجھ میں نہیں آئی نا اس لیے. ایک آدمی چوری کرے گا تمہارے گھر کے اندر, تمہاری, اب یار میرا میں بولوں گا تو بولو گے کہ ایسا بول رہے ہیں. بول دو, تمہاری سنت اپنے قابل کی سنت ادا کرو. سنت کیا ہے؟ یہ تو منافقین کے لیے اللہ اس کے رسول کا طریقہ ہے, منافقین کے لیے. مغیرہ بن صحابہ کو حرام کی اولاد نہیں کہا تھا؟ مغیرہ بن صحابہ وہ, ارے ولید بن مغیرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ کو کیا کہا تھا؟ حرام کی اولاد نہیں کہا ولید بن مغیرہ کو. اچھا ٹھیک, ذرا آیت پڑھنا, آیت پڑھو ذرا. بادی کا دلیل نہیں ہے. کون, اس کا شان نزول کیا ہے؟ ارے شان نزول مطلب کیا ہوا تھا؟ تو شان نزول بتاؤ نا, عالم ہونا, عالمانہ گفتگو, شان نزول بتاؤ اس کا. تو مطلب بتانا بھائی, بولا کہ نہیں بولا اللہ پاک نے؟ بولا کہ نہیں؟ کون سے بولا کہ نہیں اللہ پاک نے؟ بتایا کہ نہیں؟ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں بولا کہ نہیں اللہ پاک نے؟ اچھا مجھے ایک قرآن میں جو, چلو اس پر آ جاؤ, تم ادھر ادھر بھاگو مت, حفظ ایمان پر آؤ. تم ادھر ادھر بھاگو, حفظ ایمان پر آؤ. تم نبی چلو حفظ ایمان پر آؤ, حفظ ایمان پر آؤ. ابے گستاخ رسول کو اس طرح بولنا, میں نے گالیاں نہیں بولا, میں نے لفظ گالی نہیں بولا, میں نے لفظ گالی نہیں بولا, میں نے لفظ گالی نہیں بولا. گستاخ رسول کو اس طرح بولنا, میں نے کہا گستاخ رسول کو اس طرح بولنا یہ اللہ اور رسول کی طریقہ ہے. کیا گالی بولا میں نے؟ لفظ گالی بولا میں نے, لفظ گالی. ایسا پکڑے گئے ہو نا, ایسا بھاگ رہا ہے یار, کدھر کدھر چلے بھاگ رہے تو ادھر ادھر. چل پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الزام لگایا اس کو کلیئر کرو پہلے. ابھی آپ کیا الزام لگایا بتاؤ, کیا الزام؟ بات کا ذریعہ اس کو جو تم گالی بکنے کا استعمال کر رہے ہو, مجھے میں نے کہاں بولا گالی بکنا؟ ابے میں نے کہاں بولا گالی بکنا؟ تو گالی بکنا جائز نہیں ہے. ارے تو میں نے کہاں بولا گالی بکنا؟ تو ابھی کیا کہہ رہے تم منافقین کو ولید بن مغیرہ کا ذکر کیوں کیا پھر تم نے؟ ہاں میں نے یہ کہا کہ اللہ اور رسول کی سنت ہے اس طرح سے بولنا, اس طرح سے بولنا. تو گالی بکنا کیا ہے؟ گالیاں بکنا, برا بھلا بولنا. گالیاں کہاں بولا بھائی, گالی کہاں بولا؟ تو اپنی طرف سے جوڑ دے یہ ایسا حال بیان ہو گیا تیرا فیضان. تو ابھی تک کے عبادت پر بھی آیا, بتا چل عبادت پر پیش کری. چل عبارت پر, عبارت پر, جو موضوع ہے اس پہ بات کرنی ہے تو بات کرو, ورنہ موضوع پر بات کر. آ جا, ارے تمہارا ادھر ادھر مت بھاگ, موضوع پر موضوع پر بات کرنے دے. چپ رہے, تو راہیل خان تو خاموش رہ جا, چپ رہے.
ये कौन है? ये कौन है तुम्हारे साथ? तेरे मुंह को जिब लगा ले, खामोश रह जा। जिब नहीं होता है, जिब नहीं होता है, जिप होता है, जिब नहीं होता है, जिप होता है। जाहिल मुतलक, पहले बोलना तो सीख ले। ये कौन है तेरे साथ? फैजान, जाहिल। फैजान ये कौन है तुम्हारे साथ? आज ये पकड़े। फैजान ये कौन है तुम्हारे साथ? फैजान, फैजान ये कौन है तुम्हारे साथ? फैजान ये कौन है तुम्हारे साथ? हनफी देवबंदी बोल रहा हूँ। ठीक है, कौन बोल रहा है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फैजान इसको खामोश कर, फैजान इसको खामोश कर, कराओ, सुन्नी हनफी देवबंदी। फैजान इसको खामोश कर, इसको फैजान खामोश कराओ। ये बीच में बोलेगा नहीं, ये शराइत में से नहीं था। फैजान इसको ये खामोश तीसरा कर, है, इसको बंद कर। तूने शर्त की खिलाफ वर्जी करी है, इसको बंद करा। फैजान खामोश कर इसको। सब चुप हो जाए, सब। हाँ फैजान इसको खामोश कर, खान को खामोश करा। फैजान इसको खामोश कर, उसको खामोश कर फैजान, वरना फैजान उसको खामोश कर। पहले समझ गया। हाँ तो फैजान खामोश करो, हाँ तो खामोश करो फिर उसको खामोश करो। कौन है तुम्हारे साथ? वो तुम्हारे साथ कौन है? मुंह खामोश हो जाइए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इधर तुम बात करो, तुम्हारे साथ वो कौन है? अब्दुल रहमान। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तुम्हारे साथ कौन है? वो अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को कॉल पे लेने की बात की थी तुमने मेरे से? अब ये भागने का रास्ता, वो बोल नहीं रहा है बीच में। भागने का रास्ता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, सिर्फ पूछ रहा हूँ। एक मिनट, ये कह रहा है वो बोल नहीं रहा बीच में। अगर वो बोला नहीं बीच में तो पता कैसे चला कि अब्दुल रहमान लाइन पे है? बोला है वो, और मैंने अभी तक नहीं बोला, 3 बार बोला है वो। बात कर रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, राहिल खान से तो बात हुई थी, बैठे हुए रहेंगे। बोल रहा है तो राहिल खान से तो बीच में बात हुई थी रहने की। अब्दुल रहमान से बात हुई थी क्या? रजा, तेरे कानों में क्या लगा हुआ है तेरे? तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर अब्दुल रहमान, वरना बहुत जूते खाएगा। तमीज से बात कर। फैजान तुझे बात करनी है या राहिल प्यार करनी है? ढंग से बात करो, है ना? फैजान ढंग से बात करो। मत, बहुत देर हो गई भागते भागते। फैजान ढंग से बात करनी है तो करो। कयामत तक तुम थानवी की बोली का दिफा नहीं कर पाओगे। कयामत तक थानवी की बोली पढ़ा, थानवी की बोली पढ़ा। इसको खामोश कर, इसको खामोश कर। ये खामोश हुआ, ये खामोश हुआ। अच्छा चलो खामोश, इसको खामोश करो। खामोश हुआ ये? जी बिल्कुल खामोश हो। ठीक है, बिल्कुल। अब नहीं बोलेगा ये। अभी जो आप एक मिनट फैजान, फैजान एक मिनट, फैजान एक मिनट। ये अब नहीं बोलेगा। बोलोगे फैजान साहब बोलो। अच्छा मौलवी फैजान साहब, मौलवी फैजान साहब जी हाँ सुनिए, ये बीच में अब नहीं बोलेगा। आप अपने राहिल खान साहब को चुप कर लीजिए। एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, एक मिनट। ये बीच में अब नहीं बोलेगा, इसलिए कि हमारे दरमियान जो बात हुई थी राहिल खान साहब के जरिए से बात हो रही है। राहिल खान साहब अगर बीच में कोई बात बोल रहे हैं तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मौजू पर बात करिए, वो कुछ नहीं कर रहा है। ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये जो भी साहब है बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो भी साहब है बीच में नहीं बोलेंगे। अब आप इस बात से रुजू करते हैं कि बाद अली का जनी जो आयत, चलिए यहाँ आइए। यहाँ जो थानवी की मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये जो जवाब उन्होंने दिया है, इस जवाब पर आ जाइए और मुझे समझा दीजिए अगर आप वाकई बात को हल करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब आप फिर ये बहुत अच्छा, आप बात हल करना चाहते हैं, आप मसले को हल करना चाहते हैं, आप मसले को हल करना चाहते हैं, मसले को उलझाना चाहते हैं। आप जीत और हार का मसला बनाना चाहते हैं या ईमान और कुफ्र के मामले को हल करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप बताएं। एक बात बताओ, मैं आपसे जीत के मुझे कौन सी जन्नत मिली? आप हाँ तो बस तो ईमान और कुफ्र के मसले को हल करना चाहते हैं ना, आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप बात पर आइए। ठीक है, इधर उधर ना भागे, है ही नहीं, बात पर आइए। मैं बात कर रहा हूँ जो उस पर आ जाइए। ठीक है, अब जो है मौलवी अशरफ अली, देखिए मैं अदब से नाम ले रहा हूँ, बहुत अच्छे से। फैजान सुनो, हमारी समझ में नहीं आई थी, मैं उसको फैजान मेरी बात सुनो। फैजान एक बात सुन लो, ये बीच के अंदर जो तुम वजाहत की रट लगा रहे हो, ये एक नंबर की बेवकूफी है। इसलिए कि वजाहत अपनी बात की जो तुमने लिखा है, मैं तुम्हारी बात की कोई वजाहत नहीं करूंगा। ठीक है, इसको समझ लो अच्छी तरह से, है ना? आपको हमारी बात समझ में नहीं आई पूरी तरीके से, हमारी किताब आपकी सारी बात हमारी सब समझ में आ रही है। हमारा जो एतराज है आप पर, सुनिए, हमारा जो एतराज है आप पर वो ये एतराज है कि आपने मेरे आका आपने मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी की है और उनके इल्म गैब को बच्चों, पागलों, जानवरों के इल्म से तशबीह दी है। ये हमारा एतराज है आप पर, ये हमारा एतराज है आप पर। आप अगर इसकी वजाहत कर सकते हैं, आप इसको क्लियर कर सकते हो तो क्लियर करिए। इधर उधर क्यों भाग रहे हैं आप इतनी देर से?
मैं नहीं भाग रहा कहीं भी, मैं तो यही हूँ। मैं तो आपको जब हमारा एतराज, जब आपको मालूम है कि हमारा एतराज आप पर जो है वो हिफ्जुल ईमान की इस बोली पर है, आपको अच्छी तरह मालूम है, तो आप उस बोली की वजाहत करते, अगर आप वाकई मतलब जो है तो हक पसंद आदमी है, और अगर आप ये चाहते हैं कि उम्मत में इख्तिलाफ और इंतशार न हो, आप ये चाहते हैं कि तफरकाबाजी न हो, आप ये चाहते हैं कि लोग एक हो जाएं, तो आप इस इबारत की जो है तो सही तावील पेश करते ताकि समझ में आती बात आवाम की समझ में। लेकिन आप कभी सवाल पर भागते हैं, कभी आप जवाब पर आते हैं, फिर जवाब के अंदर वजाहत ढूंढते हैं, और इस तरह की बातें कर करके 23-24 मिनट से बल्कि 34 मिनट से आप बात को घुमा रहे हैं इतनी देर से। तो ये तो गलत बात है ना। अगर आपको वाकई मतलब जो है तो इंतशार खत्म करना है, वाकई इख्तिलाफ खत्म करना है, तो इस बोली पर आइए ना, जिस बोली पर हमारा एतराज है। आप एक काम करिए, आप वही इबारत पढ़िए, वही इबारत पढ़िए आप। अगर बोले ज़ैद वही आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर। जी हाँ जी, चलिए मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पर ये है, तो मैं भी रिपीट कर रहा हूँ उसको कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है। ठीक है, अब ये किसकी बात को रिपीट किया जा रहा है? ज़ैद की बात, जो ज़ैद ने एतराज से वो सवाल किया उस पर, वही तो मौलवी खानी साहब कह रहे हैं कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। जी माशाअल्लाह जी। ज़ैद सही हो, अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है, यानी दरियाफ्त तलब अम्र किससे है? ये ज़ैद से है। ठीक है, हाँ किससे है? दरियाफ्त तलब अम्र ये है। अब आगे बढ़िए आप। ज़ैद तो आलिम नहीं था लेकिन वो पूछ रहे, ठीक है ना। दरियाफ्त तलब अम्र ये है। हाँ जी पढ़िए। हाँ जी, इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब? जी, अब ये किससे सवाल हो रहा है? हाँ, सवाल ज़ैद पर हो रहा है ना, कि ज़ैद की मुराद यानी वो बाज़ उलूम मानता है या कुल मानता है? बाज़ मानता है, कुल मानता है। ठीक है जी, सुन लीजिए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आलिमुल गैब कह रहा है ज़ैद, तो ये फरमा रहे हैं कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब या कुल गैब, यानी वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, ठीक है, आलिमुल गैब कह रहा है, तो बाज़ गैब की वजह से कह रहा है, ये कुल गैब की वजह से। कुल गैब, ठीक है ना। तो सवाल किस पर चल रहा है? आलिमुल गैब कहे जाने पर। तो अब जो मौलाना शरीफ थानवी साहब ने आगे जो, अरे यार एक मिनट फैजान, एक मिनट बस, एक मिनट रुक जाओ, है ना। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि रुक जाओ कहा, मैंने रुक जा नहीं कहा, रुक जाओ कहा, अभी आपने गलत सुन लिया। ठीक है, मैंने रुक जाओ कहा। ठीक है, देखिए उन्होंने ये वो जो है तो ज़ैद से कहा कि अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। ठीक है जी, बाज़ मुतलक उलूम गैबिय्या है या कुल गैब है? कुल गैब मुराद है, यानी ज़ैद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तो वो बाज़ इल्म गैब की वजह से कह रहा है या कुल इल्म गैब की वजह से कह रहा है? ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात ये है, ठीक है, थोड़ी सी बात ये है, अब आप मुझे बताएं, क्या गैब का इल्म नबी के अलावा किसी और को भी है या नहीं है? ये एक डिफरेंट अलग मौजू है, अलग टॉपिक, उस पर बात करेंगे। अंदर है ये, किसी के अंदर नहीं, अलग मौजू है, उस पर बात करेंगे हम। अभी पहले ये इबारत पूरी कर ले, फिर उसके बाद आप वजाहत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वजाहत करते जाइए। ठीक है, तो बाज़ गैब है या कुल गैब? ठीक है जी जी जी। तो बाज़ गैब या कुल गैब, यानी गैब की दो किस्में कर दी थानवी साहब ने। इल्म गैब की दो किस्में ज़ैद के मुताबिक, बाज़ गैब या कुल गैब, तो गैब की दो किस्में हो गई ना। सुने किसने किया? ये कौन दिखाइए, सुने किसने लिखा है? फिर किसने लिखा? ये किताब किसने लिखी? थानवी साहब ने नहीं लिखी। सवाल नकल किया गया है, वो सवाल है, सवाल इल्म गैब का है, सवाल वो आलिमुल गैब है और यहाँ इल्म गैब है। सुनिए, अब बात को उलझाएंगे। आप पहले समझे कि सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर नहीं है, बल्कि आपको आलिमुल गैब कहे जाने पर है। ठीक है ना, वो तो हो गई ना, आलिमुल गैब पर है, मैंने भी तो कहा भी आलिमुल गैब पर है। लफ्ज़ आलिमुल गैब आपने ज़हन में रखें और उसको अपनी बातों में जिक्र करें, तभी ये बात क्लियर होगी। आलिमुल गैब पर सवाल था ना, सुनिए ना फैजान, बात तो वही आ रही ना, आलिमुल गैब पर सवाल था ना। तो इन्होंने कहा कि बाज़ गैब है या कुल गैब, तो गैब की दो किस्में करी कि नहीं थानवी साहब ने? यहाँ पर क्या है कि ज़ैद का अकीदा है
یار بات کو وضاحت کرنی چاہیے. ہاں بولیے. علم غیب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ رہا ہے, تب وہ نہیں, غیب کا عقیدہ یہاں پر ابھی واضح نہیں ہوا. یہ تو تھانوی صاحب اس پر الزامی طور پر کہہ رہے کہ بعض غیب یا کل غیب, وہ کیا مانتا ہے, بعض غیب مانتا ہے یا کل غیب مانتا ہے؟ بات چلیے نا ہمارا تو زید کے عقیدہ, ہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں زید کے عقیدے پر کہ زید جو عالم الغیب کہتا ہے, سنی زید جو عالم الغیب کہتا ہے تو اس غیب سے, ارے یار وہی تو کہہ رہے ہیں, وہ زید جو عالم الغیب کہہ رہا ہے, سنیے تو سنیے تو زید جو عالم الغیب کے, زید کی تو بات کر رہا ہوں میں, زید بن حارثہ. آپ یہاں پر یہ بتائیں کہ یہ ہمارے عقیدے کی بات چل رہی ہے. اچھا غیب کی دو قسمیں کری کہ نہیں تھانوی صاحب نے, بتاؤ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر ہمارے عقیدے کی بات چل رہی ہے, زید کے عقیدے کی بات چل رہی ہے. ہاں اچھا, یہ لکھنے والے جو ہے یہ کتاب, یہ جواب لکھنے والے زید ہے یا تھانوی صاحب ہے؟ اب آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ کوئی سائل آپ کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے, اور سوال آپ اس کا نقل کرتے ہیں, تو عبارت آپ کی ہوگی سائل کی ہوگی؟ تو میں وہ جو سوال مجھ سے کرے گا اس سوال پر جب میں جواب دوں گا, ایک منٹ, جب میں جواب دوں گا تو وہ جواب تو میرا ہی ہوگا نا. سنیں, اس نے عقیدے پر سوال کیا تو ارے تو جواب تو میرا ہی ہوگا نا, کسی اور کا تھوڑی ہوگا. سنو تو, جواب کس کا ہوگا؟ جواب میرا ہوگا یا زید کا ہوگا؟ یہ کتاب حفظ الایمان جو ہے یہ زید کے نام پر چھپی ہے, تھانوی صاحب کے نام پر چھپی ہے. ابھی سنیے, میں تو سنیے یہاں پر تھانوی صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ کیا جواب, میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں, سنی زیادہ نہیں. اچھا چلیے ہے کہ بالذات اس معنی سے عالم الغیب اللہ ہے, اور بالواسطہ اس معنی سے بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ رہا ہے. تو اب جو اصل سوال ہے نا کہ بالواسطہ علم غیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کی وجہ سے عالم الغیب کہنے کے نقصانات کیا ہیں, اس کو بیان کیا گیا. بس یہ ہے پوری کتاب کی. ہاں چلو, ہو گئی بات, میں بولوں جی, آپ پڑھ دیے چلے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب نے زید سے سوال کیا, مطلب جواب دیتے ہوئے الزامی طور پر زید سے کہا کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب, جس کے غیب کہہ رہا ہے. ارے یار سن, ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں, اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. سنیں تو یار, ٹھیک ہے, تو یہ بعض غیب ہے یا کل غیب, یہ جو دو باتیں تھانوی صاحب نے کہی, تو غیب کی دو قسمیں کری کہ نہیں تھانوی صاحب نے, ایک بعض غیب اور ایک کل غیب, کری کہ نہیں؟ بعض غیب یہ تو ہے, بعض علوم غیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے, اس میں تو کوئی. ارے یار تھانوی صاحب نے کل غیب اور بعض غیب جو بولا, تو بعض غیب اور کل غیب تو دو قسمیں کری کہ نہیں؟ اچھا دو قسمیں کری کہ نہیں, بتائیے پہلے بتائیے. یہاں وضاحت کی گئی ہے زید کے سوال کے مطابق ہی. بھائی دو قسمیں کری کہ نہیں تھانوی صاحب نے, دو قسمیں کری. سنو, جس طریقے سے دو قسمیں کری کہ نہیں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تھانوی صاحب نے, ہاں وہ سائل کے سوال کے مطابق, میں تو بول رہا ہوں نا, سائل کے سوال کے مطابق تھانوی صاحب نے اس کو الزامی جواب دیتے ہوئے غیب کی دو قسمیں کری یا نہیں, پہلے بتائیے آپ, غیب کی دو قسمیں ہوئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, غیب کی دو قسمیں ہوئی کہ نہیں, پہلے بتائیے آپ. چلیے آپ آگے تو چلیے, آپ جواب پڑھیے. ارے یار آپ بولیے تو صحیح کہ غیب کی یہاں دو قسمیں کری تھانوی صاحب نے, آگے پڑھیے نا, آگے سمجھانے کے لیے میں بتا تو رہا ہوں, اب میں اعتراض کر رہا ہوں تو آپ بول نہیں رہے. آپ انتشار ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ بات کو کھینچنا چاہتے ہیں. یار آلریڈی میں بہت ٹائم لے کے آپ سے بات کر رہا ہوں. اب آپ مجھے بولیے, آپ مجھے بتائیے کہ غیب کی دو قسمیں تھانوی صاحب نے کری یا نہیں کری؟ زید کے مطابق سمجھانے کے لیے کری, ٹھیک ہے, اور سمجھانے کے لیے کری, کسی بھی معاملے میں کری کہ نہیں کری؟ ارے ہاں کری ہے, چلیے آپ آگے بڑھیے نا. کری, چلیے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. تو غیب کی دو قسمیں تھانوی صاحب نے کری ہے نا. راہل بھائی سنیے گا, بولیے گا نہیں, بس صرف سنیے گا, اور سامعین آپ بھی سنیے کہ غیب کی دو قسمیں تھانوی صاحب نے کری, بعض غیب اور کل غیب. ٹھیک ہے, تو بعض غیب اور کل غیب یہ بھی بات سن تو لی. ارے بھائی کسی کو سمجھانے کے لیے کیا کہ نہیں کیا؟ ارے کسی کو سمجھانے کے لیے کیا, کسی کو سمجھانے, تو آپ روک کیوں رہے پھر؟ مجھے بات تو کرنے دیجیے, آپ روک رہے نا بیچ میں, تو مجھے بولنا پڑ رہا ہے. دیکھیے بعض غیب اور کل غیب دو قسمیں ہوئی. جی آگے بڑھیے. ہاں ایک ہوئی, دیکھیے سامعین سنیے, تھانوی صاحب نے دو قسمیں کری, ایک بعض غیب اور ایک کل غیب. تو بعض غیب جو ہے, کل غیب کی نفی کر دی انہوں نے, کیونکہ کل غیب کا انکار آگے کی بولی میں مل رہا ہے. کیونکہ کل غیب تو, اور ہم بھی کل غیب اللہ رسول اللہ کے لیے کل غیب نہیں مانتے, ہم بھی نہیں مانتے.
ठीक है, थानवी साहब ने भी नहीं माना। थानवी साहब बाज़ उलूम गैबिया मानते हैं, बाज़ उलूम गैबिया थानवी साहब मानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जी बिल्कुल, बाज़ उलूम गैबिया पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला किया गया है, हमारा अक़ीदा है। जी सुभान अल्लाह, बाज़ उलूम गैबिया पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला किया गया है, ये थानवी साहब का अक़ीदा है, हमारा भी। सुभान अल्लाह, ये थानवी साहब का भी अक़ीदा है, फैजान मौलवी फैजान साहब का भी अक़ीदा है, मौलवी फैजान साहब का भी अक़ीदा है कि बाज़ उलूम गैबिया पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला किया गया है। यहाँ से साबित होता है कि बाज़ उलूम गैबिया देवबंदियों के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ उलूम गैबिया जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनिए एक मिनट तो सुनिए, जानने में और मुत्तला होने में, ठीक है, आप थोड़ा डीपली अगर जाएंगे, मुत्तला हो गए तो जाना नहीं, सुनिए अगर मुत्तला हो गए तो जानेंगे नहीं। सुनिए अरे मुत्तला होने के बाद जान लिए कि नहीं, मुत्तला होने के बाद जान लिए कि नहीं यार, सुनिए ये हसीना इब्लीसों की तरह, ठीक है बात। अबे यार क्या बोले आप मुझे, क्या बोले हंसे नहीं, क्या हंसे नहीं किसकी तरह, हसीना किसकी तरह नहीं हंसे बोले? मैंने तो शैतानों को देखा इस तरह हंसते हुए। नहीं, ये आप गलत बात बोल रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि अदब से बात करना, अब आप गलत बात कर रहे हैं। मतलब इस तरह जो हंसे वो शैतान हंसता है, आपने शैतान को देखा है? आप कह रहे मैंने शैतान देखा है? सुनिए, आपने शैतान देखा है? कहाँ मिला था आपको शैतान? कहाँ मिला? फैजान बताओ, फैजान बताओ, शैतान कहाँ मिला था तुम्हें? शैतान कहाँ पर मिला था? अभी तुमने शैतान को हंसते हुए कब देखा वो बताओ? अरे सुनो ना, अभी बता रहा हूँ। तुमने शैतान, हाँ तुमने शैतान को हंसते हुए कब देखा? हाँ सुनो, सुनाओ, अभी दे रहा हूँ दलील। हाँ सुनाओ, मिनल जिन्नती आगे क्या है? क्या है? पढ़िए ना आगे। अरे पढ़िए ना, आप पढ़ रहे तो बताओ ना, फिर वजाहत मुझसे पूछेंगे। ये अजीब हाल है आपका, मतलब बात आप करते हो वजाहत हमसे पूछते हो। शैतान को आपने इस तरह शैतान को हंसते हुए देखा, अभी आपने कहा, तो आप झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे? अरे भाई, शैतान को कब देखा? शैतान को कब देखे आप? इसका मतलब आपने शैतान को कब देखा आपने हंसते हुए? अरे वही तो बता रहा हूँ ना, अल्लज़ी अरे हंसते हुए कब देखा शैतान को वो बताइए। वही तो बता रहा हूँ, मिनल जिन्नती वन्नास, जिन्नात और इंसान। अरे तो हंसते हुए कब देखा शैतान को? आप कह रहे हैं मैंने शैतान को इस तरह हंसते हुए देखा है, आप कह रहे हैं ना इस तरह, तो आपको कब मुलाकात हुई थी आपकी शैतान से? तो सुनो, शयातीन, जिन्नात और इंसान। अरे वो शरारतें नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हंसने की बात पूछ रहा हूँ, इधर उधर मत भागिए। देखिए बात किया करे यार, इधर उधर क्यों भागती है? कुरान से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल कुरान से बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो चलिए, तो बताइए कि मतलब जो शैतान को कब हंसते हुए देखा आपने, कहाँ पर हंसते हुए देखा था, और कब आपकी मुलाकात हुई थी शैतान से, आपके जद्दे अमजद से? बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल माशाल्लाह, आपसे भी साबित करूंगा उसको मैं। माशाल्लाह, नहीं हमने तो साबित कर दिया, आपने बिल्कुल भी बोल दिया, क्लियर हो गया। चलिए तो आपने कोई चलिए फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इनमें गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरिया तलब ये अम्र है। अरे डर गए क्या? डर गए? अच्छा, उस पर बात करना है क्या? शैतान वाली बात पर बात करना है कि इस पर करना है? तुम्हें तुम्हारे जद्दे इस पर करना है या उस पर करना है? चलो सुनाओ, तुमने शैतान को कहाँ देखा? चलो बताओ, चलो दलील दे। पहले तुम मुतसिम बात असाली के, चलो दलील दो, तुमने शैतान को कहाँ देखा? तुमने शैतान को कहाँ देखा बताओ? सुन लिया? शैतान से तुम्हारी मुलाकात कहाँ पर हुई थी और शैतान कहाँ हंसा था तुमको देख करके? चलो जवाब दूं? हाँ जवाब दो जी, जवाब दे दूं मैं आपको? अरे दो ना यार, क्यों भाग रहे हो? सामीन, अरे कितनी देर से भाग रहे हो? पूरे नास उठा करके देखिए, उसका तर्जुमा पढ़ लें। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सूर्य नास का क्या तर्जुमा है? तर्जुमा बताइए। हंसते हुए देखा आपने, सूर्य नास का तर्जुमा है कि शैतान को फैजान ने हंसते हुए देखा। मैं शैतान वाले जिन्नात और इंसान भी होते हैं, हंसते हुए आपने कहा कि मैंने शैतान को हंसते हुए देखा, तो शैतान से मुलाकात कहाँ पर हुई थी आपकी? ख्वाब में थानवी साहब तो नहीं आए थे आपके? कुरान क्या है? अरे यार आप इधर उधर मत भागिए, आप ये बताइए कि शैतान को आपने हंसते हुए देखा, कहाँ देखा? चलिए बताइए, आप इस पर बात कर रहे हैं ना, आप इस पर बात करेंगे या इस पर बात करेंगे? जिस पर बोलेंगे उस पर बात होगी। चलिए, मैंने तुम्हें देखा हंसते हुए, तुम शैतान हो, साबित करूं?
मुझे हंसते हुए देखा, मैं शैतान हूँ? हाँ, तुम शैतान को साबित कर दूंगा इस बात को मैं शैतान को, तुमने ये कहा मुझसे, ठीक है? तुम शैतान आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है? मुझे तो नहीं पता ना। शैतान आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है? तुम कौन हो मुझे पता ही नहीं है ना, तुम्हारे बारे में पता ही नहीं। शैतान आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है, बताएं? शैतान तो मुसलमान है ही नहीं, और तुम्हारा भी शैतान आपके नजदीक क्या है? आपके नजदीक क्या है शैतान? हमारे नजदीक का शैतान तो काफिर है ही, शैतान को तो लानत है। आपके नजदीक शैतान काफिर है? आपके नजदीक शैतान काफिर है? एक मिनट यार, अरे एक मिनट, आपके नजदीक शैतान काफिर है और आपने अभी मुझे सलाम किया था, तो शैतान को आप सलामती की दुआ देते हैं? हाँ, उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको जो हिदायत। शैतान को सलामती की दुआ देते हैं आप? लो भाई देवबंदी हजरात शैतान को सलामती की दुआ देते, सुन लो, सुनो देवबंदी हजरात शैतानों को भी सलाम करते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुनो, देवबंदी हजरात शैतानों को सलाम करते हैं, तौबा 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 तौबा। ये फैजान देवबंदी साहब है, ये देवबंदियों के मुनाजिर हैं, और इनका हाल ये शैतानों को सलाम कर रहे हैं, कभी शैतान को हंसता हुआ देखते हैं, कभी उसको सलाम करते हैं। शैतान इसीलिए हम कहते हैं कि देवबंदी शैतानों के भाई, और आखिर क्यों ना करेंगे? आखिर देवबंदी है ना, शैतान ही के तो बंदे हैं, बिल्कुल शैतान ही के तो बंदे हैं। भागना, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो जगह पर मौजूद हूँ बेटे। मैं अपने घर में बैठा हूँ, रोड पर नहीं हूँ कि घर से निकाल दिया किसी ने मुझे, जैसे तुम रोड पर चले जाते हो। हाँ समझे, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। तुम्हारा हाल नहीं है कि तुम्हारी तरफ घर से भगा दिया, घर से बाहर निकल के बात कर रहे, घर में बात मत करना बोल दिया घर वालों ने, तो बाहर निकल करके बात कर रहे हो। हाँ नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठे ना। तुम ही कभी कभी बाहर घूमते हो, कभी जो है तो कंपनी में पहुंच जाते हो, कभी कोचिंग पे पहुंच जाते हो, कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो। तुम जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल तो ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों से चले देख के तलवा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चलिए बताइए, शैतान को हंसते हुए कहाँ देखा? इस पर बात करना है या इबारत पर आऊं? देखा मैंने। इस पर बात करोगे या इबारत पर आऊं? जल्दी बोलो। आ जाओ, चलो मेन मकसद पर ही आ जाओ। इबारत पर आऊं? चलिए फिर तौबा करो जल्दी। तुम शैतान को तुमने नहीं देखा, तुम तौबा करो, तुमने झूठ बोला, और झूठ बोलने वालों पर कुरान की लानत है, लानत अल्लाह अल काज़िबीन। तुमने शैतान को नहीं देखा, तुम तौबा करो पहले। शैतान क्यों? इंसान शैतान नहीं होता? तुमने शैतान को नहीं देखा, तुमने यहाँ देखो, तुमने शैतान मुराद लिया था या इंसान से शैतान मुराद लिया था? तुमने यहाँ डायरेक्ट शैतान बोला है ना? तुमने शैतान को नहीं देखा, तुम इससे तौबा करो, फिर हम आगे बढ़े। पहले तुम इससे तौबा करो, और या फिर तुम मानो कि तुम शैतान को सलामती की दुआएं देते हो। माज़अल्लाह, तुम देवबंदी शैतान को सलामती की दुआएं देते हो, शैतान को सलाम करते हो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितने जाहिल हो तुम लोग। हाँ, शैतान अल्लाह और रसूल का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, और तुम लोग जो है तो उसको सलामती की दुआएं देते हो, उसके लिए दुआएं करते हो। कितनी बेवकूफी और जहालत की बात है। हाँ, कितने बड़े जाहिल हो तुम। जहालत तो तुम्हारी। फैजान अरे वो तो जब सुनेंगे ना लोग रिकॉर्डिंग, तो कहेंगे कि एक देवबंदी और भागा, थानवी साहब जिंदगी भर भागते रहे, फैजान जिंदगी भर भागेगा अशफाक पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तुमसे उर्दू। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, भागते चलो। अरे पहले तुम तौबा करोगे, अब आगे पहले तौबा करो। किस बात की तौबा? तुमने शैतान को देखा या नहीं देखा, ये बताओ। इंसानों में शैतान नहीं। तुमने शैतान को देखा या नहीं देखा? शैतान में होता है नहीं होते। तुम रसूलुल्लाह, तुम अल्लाह की कसम खाकर कहो कि तुम्हारी मुराद यही थी कि मैंने एक आदमी के बारे में बोला कि मैंने शैतान को देखा। चलो कसम खाकर बोलो। क्या कसम खाऊं? किस बात पर कसम खाऊं मैं? तुम कसम खाकर ये बोलो कि मैंने जो कहा मैंने शैतान को देखा, ये मैंने इंसानों के बारे में बोला था, शैतान के बारे में नहीं बोला था। बताओ, कसम खाओ। अल्लाह ताला कह रहा है तो कुरान में। अरे भाई, तो तुम अपनी मुराद बता दो। तुम कसम खाकर कहो कि मैंने जो ये लफ्ज कहा कि शैतान को मैंने देखा हंसते हुए, ये मैंने शैतान के लिए नहीं, इंसान के लिए कहा था। चलिए बोलिए, कसम खाइए, कसम खाइए, कसम खाइए, कसम खाइए। देखिए मंतिक में तो उलझा हुआ है तू, अभी मंतिक क्या बताएगा। हाँ चल सुनाओ। चलो तुम शैतानों को सलामी देने वाले लोग आगे बढ़े। शैतान को सलाम दिया, उसकी तौबा कर लो। चलो पहले शैतान को सलाम करने की तौबा करो, उसके बाद आगे बढ़ो। शैतान की सलाम किया, उसके बाद आगे बढ़ो, तौबा करो जल्दी। ठीक है, तो तुम ये कबूल कर लो, हाँ मैं शैतान हूँ, मैं तौबा करूँ। तुम कबूल कर लो मैं शैतान हूँ, कबूल कर लो मैं शैतान। मैंने तो नहीं कहा, तुमने कहा कि तुमने शैतान को देखा। मैंने कब कहा कुछ? लो, तुम ही तो कह रहे हो मैं शैतान हूँ, तुम खुद कबूल कर। तुमने कहा ना मैंने शैतान को देखा।
तुमने कहा ना मैंने शैतान को देखा, हाँ तुमने कहा ना कि मैंने शैतान को देखा, चलो अच्छा तुमने कहा मैंने शैतान को हंसते हुए देखा और फिर इसके बाद फौरन कहा कि हम शैतान को सलामती की दुआ देते सलाम करते हैं। तुमने ये कहा कि मैं शैतान को सलाम करते हैं हम लोग, तो देवबंदी शैतान को सलाम करते हैं। सामईन अच्छी तरह देख लीजिए, सुन लीजिए, हम इसीलिए कहते हैं देव के बंदे शैतान को सलाम करते हैं। हम रसूलुल्लाह को सलाम करें तो इनको तकलीफ होती है, ये शैतान को सलाम करते हैं, ये तौबा करने को तैयार नहीं है। शैतान को सलाम करने के बावजूद भी तौबा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि तौबा इनकी किस्मत में लिखी हुई नहीं है। शैतान को सलाम करने के बावजूद तौबा नहीं कर रहा है, शैतान को सलाम किया फिर भी तौबा नहीं कर रहा है। सुनो, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जब शैतान को कैसे देख लिया तो तूने झूठ बोला, जब तुमने ये बोला और तुझे नहीं पता था तू कह रहा है, तो तूने शैतान को कैसे देखा, तूने झूठ बोला। तो झूठ बोलने पर तौबा कर, लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठ बोलने पर तौबा कर जल्दी। तुम्हारे झूठ बोलते हुए तुम किस तरीके से इबारत को घुमा रहे हो, तुम सब सामने कहाँ इबारत घुमाई मैंने तो। अरे यार तुम्हारी तो हालत खराब है। तुम ये बता नहीं रहे हो कुल गैब और बात गैर में उलझे हुए हो, आगे पढ़ने नहीं दे रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो। इबारत पढ़ोगे अब तो तौबा कर लोगे? चलो इबारत पढ़ो चलिए। अच्छा मतलब नहीं करोगे तौबा, चलिए तुमको शैतान मुबारक, हमको रसूलुल्लाह मुबारक। चलिए आगे बढ़िए, तुमको शैतान मुबारक, हमको रसूलुल्लाह मुबारक। अरे हाँ, तुमको शैतान मुबारक, देवबंदियों को शैतान मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला देवबंदियों का हश्र शैतान के साथ करे, शैतान के साथ करे। हमको रसूलुल्लाह मुबारक हो, क्योंकि हम रसूलुल्लाह पर सलाम करते हैं, देवबंदी शैतानों को सलाम करते हैं। चलिए हाँ तौबा कर लो यार एक बार। देखो आज के मैदान में थानवी साहब बचाने नहीं आएंगे, मैं भी बचाने नहीं आऊंगा, कोई और बचाने नहीं आएगा। इस तरह झूठ बोलकर ऐसी बातें करके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, बोल दो अस्तगफिरुल्लाह, जल्दी बोल। झूठ सामने लाऊंगा तब अस्तगफिरुल्लाह बोल दो यार, अस्तगफिरुल्लाह बोल दो। करूंगा मैं शादी से, अभी करूंगा मैं शादी। अरे कर दो अस्तगफिरुल्लाह, वरना क्या मालूम क्या होगा तुम्हारा। तौबा कर लो, देखो तौबा कर लो। काल होती है कि मेरी बात फैजान सुनो, अरे फैजान सुनो तो अरे भागूंगा थोड़ी, तुझे भगाऊंगा, बेटे भागूंगा थोड़ी है। अरे वो तो मैं बिल्कुल पढ़नी है। तौबा करो, पढ़ो वरना दफा हो जाओ। तौबा करो इबारत पढ़नी है तो पढ़ो वरना दफा हो जाओ। शैतानों के बाद शैतानों को सलाम, तौबा करो। चलिए भाई जाने में अच्छा बिल्कुल शैतानों को तो सलाम करता है। चलो बिल्कुल चलिए भाई, सामीन देख लिया, बिल्कुल बोल रहे हैं। जब मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतना बड़ा शैतान हो, मुझे मालूम हो रहा है कि तुम कौन। तो ये अच्छा क्या हुआ, तुमको ये मालूम पड़ गया? तुमको क्या मालूम पड़ गया? पढ़ोगे? अरे यार तुम पहले बात पूरी करो, अब तुमको क्या मालूम पड़ गया? अरे यार तुम क्यों मौजूद से क्यों उठ रहे हो? अरे मैं तो इबारत पढ़ रहा था, तुमने बोला ना तुमको कुछ मालूम पड़ गया, तो बताओ ना क्या मालूम पड़ गया। अरे पढ़ो ठीक है। अरे सुन यार, अरे देखो बीच में मत बोला, इबारत पढ़ दो, बीच में मत बोला, इबारत पढ़ दो। तुम्हारे मुझसे कुरान हदीस अच्छी नहीं लगती, तुम शैतान को सलाम करो। चलो इबारत सुनो, इबारत सुनो। शैतान को कुरान तुमने अभी इकरार किया कि हम करते हैं, तुमने इकरार किया, रिकॉर्डिंग हुई है, तुमने इकरार किया। चलिए तुमने कहा शैतान को हम सलाम करते हैं। चलो वो बताऊंगा, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। मालूम नहीं, पढ़ूं या भागोगे अब? अरे वो तुम भागोगे। अरे पढ़ू के भागोगे? चलो पढ़ो पूरी रात। हाँ अरे तुम तो पूरी रात बैठोगे, तुम्हारे घर वालों ने तुमको लात मार के बाहर निकाल दिया, रोड पर खदेड़ के बात कर रहे हो तुम, पूरी रात बैठोगे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो, देखो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो, मतलब वाकई ऐसा हुआ है तुम्हारे तो है ना। यार हसीदी आएगी तो क्या होगा, ऐसी की हरकतें करेगा तो जो बुलाती नहीं इसका बताओ। ये चूजा लोगों को मतलब जो था वो देख कहता रहता है, चैलेंज देते रहता है। बताइए चलिए हाँ चलो बाग गए भाई या कुल गए, आ जाऊं? हाँ पढ़ो हाँ पढ़ो ना। हेलो पढ़ूं? आप खामोश रहोगे ना? जी पढ़ो जल्दी पढ़ो, नहीं तो जिन जाग जाएगा तुम्हारा बीच में अचानक, है ना? अरे भाई पढ़ोगे आप, टाइम नहीं करूँगा। हाँ मुराद गैब बाज क्या है, इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब? ठीक है जी। यहाँ सामीन से मैं बात कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ मत बोलो बिल्कुल। सामीन से बात कर, तुमसे नहीं कर रहा हूँ, तुम खामोश रहो।
सामीन देख लीजिए, बात यहाँ पर दो इल्म गैब की दो किस्में की है। एक अबे इसी, अरे यार इल्म गैब की दो किस्में अभी तो तुमने मानी ना, क्या आप इसी देर से भूल गए होंगे लोग? तो बताना नहीं पड़ेगा, वजाहत क्यों कर रहे हो? बताना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वजाहत करूंगा मैं, बिल्कुल वजाहत करूंगा। मुझे एतराज है इस इबारत पर, मुझे एतराज है इस इबारत पर। पूरे जवाब की वजाहत करो फिर। मुझे इस इबारत पर एतराज है, मुझे तुम्हारी चोरी करने पर एतराज है। तुम्हारी पूरी जिंदगी थोड़ी पढ़ूंगा मैं, तुम्हारी चोरी करने पर एतराज है, मुझे तुम्हारे जिना करने पर एतराज है, मुझे तुम्हारी इबादत करने पर एतराज है, मुझे तुम्हारे जो है ना गुनाह करने पर एतराज है, मुझे तुम्हारी जलील होने पर एतराज है। इसलिए मैं उसकी इबारत पर बात करूंगा, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी थोड़ी पढ़ते चले जाऊंगा। तो थानवी साहब की जिस इबारत पर मुझे एतराज है वो पढ़ रहा हूँ मैं, और उसकी वजाहत भी करूंगा। पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, बाज गैब मुराद है या गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब? अगर देखिए कुल गैब तो खत्म कर दिया उन्होंने, अब बाज गैब पर आए हैं वो। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं, किसके लिए मुराद बोल रहे हैं? अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है, यानी ज़ैद बाज उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है। हाँ, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद बाज उलूम गैबिया की वजह से आलिमुल गैब समझ रहा है बकौल तुम्हारे, ठीक है, बाज उलूम गैबिया मुराद है, तो इसमें सुनो, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है? जी माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। एक मिनट सुनो, नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा मैं, नहीं रुकूंगा ना, नहीं रुकूंगा मैं। अब आप अभी क्या वजाहत? तो वजाहत नहीं करूंगा। हाँ चलो बस, हाँ चलो ठीक, करो। ये है वो इबारत को लेके चुप करके सुना, तो मैं वजाहत कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ सुन रहा हूँ ना, सुनाओ ना, सुन रहा हूँ ना, सुनो। ये है वो इबारत जिसको लेकर के इनके मुफस्सिर और इनके तमाम उलमा ने हमारे ऊपर जाएंगे। अब आप क्या कहा कि ज़ैद का जो अकीदत था कि वो बाज़ उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब समझ रहा था, तो करते हुए यहाँ पर थानवी साहब ने बात कायम की है कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं, यानी ज़ैद बाज़ उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? ठीक है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, 100 बार माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। चुप करो ना, अभी मैं वजाहत कर रहा हूँ। ऐसा इसमें गैर तो कैसा सुनो, अभी चुप रहना, वजाहत मैं। अरे कैसा इल्म गैब बताओ ना, वजाहत करो ना, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं ही तो पूछ रहा हूँ। क्यों बोल रहे हो? वजाहत मैं तो मैं पूछूंगा नहीं, कैसा इल्म गैब? ऐसा से कैसा इल्म गैब? यहाँ तशबीह के लिए तो पहली बात मुराद नहीं है, ठीक है? अगर बात एक मिनट वो उधर मत जाओ, अगर बात उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब, कैसा इल्म गैब? कैसा इल्म गैब? पूरी इबारत पढ़ो नीचे, पूरी इबारत पढ़ो फिर मैं वजाहत कर। कैसा इल्म गैब वो बताओ, कैसा इल्म गैब? पूरी इबारत पढ़ो फिर मैं वजाहत कर रहा हूँ। अगर बात उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र, बल्कि हर सभी व मजनू, बल्कि जमी हैवाना तो बहाइन के लिए भी हासिल है। माज़अल्लाह। अब आगे पढ़ो ना, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। और पढ़ूं ये चुप, और पढ़ूं बिल्कुल अभी चुप। अच्छा सुनो। हाँ ठीक। जो इमाम अहमद ने इबारत नकल की, तो उसमें उन्होंने वजाहत हो गई थी। वो जुमला ये कि क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, उसको काट दिया, इसको बयान नहीं किया। अब पीछे से मैं दोबारा इसकी वजाहत कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, मैं इसी इबारत की वजाहत करता चलूंगा। अब ये है कि गैब से मुराद बात गैब है या सुन है। ज़ैद का अकीदा आपने सुन लिया था, तो बिल्कुल चुप रहना। ज़ैद का अकीदा आप सबने सुन लिया था कि ज़ैद जो है बाज़ उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा था। आवाज नहीं आ रही फैजान साहब, फोन के करीब आइए। आवाज कट रही है आपकी फैजान साहब, आप जरा कहीं दूसरी जगह से निकलिए, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, फरमा रहे हैं आपकी आवाज कट रही थी। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, यानी ज़ैद बाज़ उलूम गैबिया, ठीक है, मुराद लेते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तो फिर इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? अच्छा, माज़अल्लाह,
क्लियर करिए, आवाज क्लियर करिए, आवाज क्लियर करिए, आवाज कट रही है आपकी। क्लियर आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल नहीं, यहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है आवाज, यहाँ कट रही है। मेरे बिल्कुल नेटवर्क फुल है, मेरे नेटवर्क बिल्कुल फुल है। नहीं, यहाँ आवाज कट रही थी, इसलिए मैंने वापस पूछ लिया। मुझे आप डिस्टर्ब नहीं। अरे तो भाई बताना, अबे तो भाई आवाज तो आना चाहिए ना, कि कुछ भी मतलब बोलते चले जाओगे। हाँ, करें डिस्टर्ब ना करें, आवाज घुसेड़ दोगे कहीं पर जाकर, कहोगे डिस्टर्ब ना करें। अभी आप चुप रहेंगे, फिर मुझे वरना बात दोबारा। चुप तो हूँ, तो आवाज क्लियर करिए ना। चलिए आवाज क्लियर करिए। तो आप बिल्कुल चुप रहे हैं, बिल्कुल नेटवर्क फुल है, मैं बाहर खड़ा हूँ, इसलिए बाहर। आप फिर बाहर निकल गए, आप फिर बाहर निकल गए, नेटवर्क में आइए ना, बाहर क्यों निकल जाते, बार बार क्यों भगा देते घर वाले आपको? भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 गज कितनी है? थोड़ा सा कितनी है? आपकी तरह नहीं है, कितनी? ठीक है ना? कितनी? मैं आपको बताने नहीं कह रहा हूँ, मुझे जवाब कितनी है? बिल्डिंग कितनी है? बिल्डिंग कितनी है? अरे यार आवाज देखो कहाँ जा रही है इनकी, कह रहे आवाज सुनो। हेलो, रहमान की आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अरे उनको आ रही है, हमको नहीं आ रही ना, आना चाहिए ना सर। हमारी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर आना चाहिए ना यहाँ, बताइए। ठीक है, अब क्लियर आ रही है आपको? हाँ, बिल्डिंग कितनी है वो बताइए जी। तो बिल्डिंग कितनी है आपकी? अगर बाज़ उलूम मुराद है तो इसमें हुजूर है कि क्या तख्सीस है, यानी ज़ैद अगर बाज़ उलूम माज़अल्लाह अगर ज़ैद हुजूर की कोई खासियत ही नहीं है। अबे बाज़ उलूम में गैबिया भी अगर मुराद है तो हुजूर की कोई खासियत नहीं है इसमें। अरे तो चुप करोगे तुम, क्यों काम करा रहे हो बीच में? मैं वजाहत कर रहा हूँ ना पूरी। एक मिनट जी, देखें आप भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, बात को जो है टूल नहीं मिल रही है, ठीक है। आप एक काम करें, 3 मिनट बात कर अशफाक साहब इसको चुप कराइए, ये नहीं बोल सकता बीच में। अरे ये खामोश ये नहीं बोल सकता बीच में। रहमान बोल रहा है क्या? हाँ, ये नहीं बोल सकता बीच में, ये बिल्कुल नहीं बोल सकता। अब्दुल रहमान बिल्कुल चुप रहेगा। अब्दुल रहमान बिल्कुल चुप रहेगा। अब्दुल रहमान को भगाओ यहाँ से, भगाओ बिल्कुल अब्दुल रहमान को यहाँ से। अब्दुल रहमान को निकालो यहाँ से, इसको चुप करो, निकालो अब्दुल शैतान को, निकालो यहाँ से, अब्दुल शैतान को यहाँ से निकालो, अब्दुल शैतान को यहाँ से निकाल। अब्दुल शैतान बात नहीं करेगा, अब्दुल शैतान को निकाल बाहर। अब्दुल शैतान क्यों बात करेगा? अब्दुल शैतान निकल, अब्दुल शैतान भागे यहाँ से। अब्दुल शैतान क्यों बात करेगा? अबे अशफाक चैम्बर, तुम मुझे शैतान। अब्दुल शैतान खामोश रहे, अब्दुल शैतान अपनी जगह पे, अब्दुल शैतान खामोश रहे, अब्दुल शैतान को खामोश कर। शहजान अब्दुल शैतान को खामोश करो, शहजान अब्दुल शैतान को खामोश करो, शहजान अब्दुल शैतान को खामोश करो, अब्दुल शैतान को खामोश करो, अब्दुल शैतान भाग रहे, अब्दुल शैतान को खामोश करो। अब्दुल शैतान क्यों बोल रहा है बीच में? भाई तुम्हारा भाई नहीं है, अशफाक साहब तुम्हारा भाई नहीं है। अब्दुल शैतान क्यों बोल रहा है बीच में? अब्दुल शैतान क्यों बोल रहा है बीच में? नहीं बोलना चाहिए ना अब्दुल शैतान को। अब्दुल शैतान को खामोश करो, अब्दुल शैतान को पहले खामोश करो। पहले अब्दुल शैतान को खामोश करो, फिर बात करूंगा मैं। पहले अब्दुल शैतान आप नहीं बोलेगा, अब्दुल शैतान से एक बार उठक बैठक लगवाओ। अब्दुल शैतान को बोलो को उठक बैठक लगा, बीच में बार बार बोलता है नालायक। उठक बैठक लगवाओ, अब्दुल शैतान से कान पकड़वाओ उसके बाद बात करना मुझसे। खामोश हो जाइए, शैतान को दिक्कत होगी। अब्दुल शैतान को पहले कान पकड़वा पेश करके, जो गलती करी तूने 3 बार, मैं तो यहाँ मेरे सामने से इतने 76 मारता कि उसके जो है ना पीछे का पूरा इलाका सिखा देता मैं। पढ़ू सड़ी हुई कोठी में रईसी डालता कि वो मुंह से निकल जाती थी। ये अब्दुल शैतान को खामोश करो, अब्दुल शैतान को, अब्दुल शैतान खामोश हो, अब्दुल शैतान खामोश हो। 1 मिनट हजरत, अंडी बंडी संडी। अब अब्दुल शैतान बोला तो इसकी बस आगे समझ जाओ। चलो फैजान बोलो। अब्दुल शैतान खामोश रहना। हाँ अब्दुल शैतान, चलो हाँ फैजान बोलो। अब मैं हाँ अब्दुल शैतान को अच्छा 1 मिनट फैजान, 1 मिनट फैजान, 1 मिनट फैजान, अब्दुल शैतान को आप बोल दो आखिरी बार कि अब नहीं बोलेगा, ठीक है? अब अगर अब्दुल शैतान ने बोला ना, मैं अपनी इसी बात पर इंशाल्लाह वजाहत करके मैं वजाहत कर दूंगा। आपको मानना हो तो मानना, ना मानना हो तो आपकी मर्जी। क्लियर करिए ना, बात नहीं होगी ना। आप इंतजार दूर करना चाहते ना, क्लियर करिए सारी बात। आप भागेंगे थोड़ी, क्लियर करेंगे, रात भर बात करेंगे ना। आपने कहा मैं रात भर बात करूंगा आपसे, वैसे भी हम तो घर के अंदर बैठे हुए, पूरा घर जागेगा हमारा, क्योंकि जोर जोर से बात करूंगा, मेरे पूरी फैमिली जागेगी। तुमको तो घर से बाहर निकाल दिया, तुम बाहर भी बात कर लोगे। मैं भी बात खत्म कर रहा हूँ, मैं भी जवाब। हाँ चलो बोलो, जवाब दो, जवाब दो, कुछ भी मत बोलना, ठीक है?
बोलो, कुछ भी क्यों नहीं बोलूंगा। अब्दुल शैतान बीच में बोलेगा नहीं। अब्दुल शैतान को खामोश रखेंगे आप। पहले अब्दुल शैतान को बोलो कि बीच में कुछ मत बोलना। बोलो उसको। मुझे ललकार रहा है, बात करने की इसकी औकात नहीं है, मुझे ललकार रहा है। चल मुंह बंद करके बैठ। जिप लगा, जिप जिप फिर जिप क्या कहता है अब्दुल शैतान, फिर बोला अब्दुल शैतान, क्यों बोला? नहीं बोलना चाहिए ना अब्दुल शैतान को बीच में। अरे मुझे मालूम है कि तुम शैतान को सलाम करते हो, साथ में लाए हो शैतान को, उसको सलाम भी कर रहे हो। सलाम कर लेते बाद में मालूम है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बीच में बोलेगा। शैतान को बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। हम आदम की औलाद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती, हम शैतान की बात नहीं सुनेंगे। चलो बात करो, चलो सुनाओ सुनाओ। 5 मिनट बिल्कुल चुप रहना। मैंने तुमसे एक मिनट, मैंने तुमसे ये कहा, मैंने आपसे ये कहा कि आप अब्दुल शैतान को खामोश करें, तो आप खामोश क्यों नहीं किए उसको? आपका भी शैतान खामोश हो गया है ना, आप चुप हो जाइए। तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं उसको? चुप करवाइए उसको। खामोश हो जाइए, अब खामोश हो, खामोश हो जाए। ठीक है, हाँ बीच में बोलता है बिला वजह। चलिए 5 मिनट शुरू करिए। ठीक है, 5 मिनट खामोश रहिए। सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सामईन, मैं ये जो बरेलवी बाजू वाला ही भाग गया होगा। जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहिएगा। प्लीज आप खामोश रहिए। ठीक है, खामोशी के साथ। ठीक है, सुनाइए। तो सामईन, ये लोग इस इबादत को लेके हमारे पर इल्जाम लगाते हैं। अरे इल्जाम नहीं, खुली हुई इबारत है यार, इबारत की बात करो ना यार। चुप करोगे, क्यों बोल रहे हो आप? तो इबारत पर बात करो ना। जो लोग इल्जाम लगाते हैं, अरे खुली हुई किताब तुम्हारे सामने रख दी हो, तुम कह रहे इल्जाम लगाते हैं। यानी चोर की चोरी सामने खोल दी हो, कह रहे इल्जाम लगाते। इल्जाम है ये? आप कुछ कहो ना, हकीकत है ये, हकीकत। चलो बताओ। खामोश बोलो। खामोश ही हूँ, लेकिन तुम बिला वजह की बात मत करो। यहाँ बताओ। रहमान साहब, मैं सामईन, मैं कह रहा हूँ, अब मैंने से 5 मिनट का वक्त मांगा। अब अगर वजाहत करिए, वजाहत करिए, वजाहत करिए, बिला वजह की बात ना करिए, खींचिए मत। चला जाऊँ क्योंकि वक्त ऑलरेडी नहीं भागेंगे आप, नहीं भागेंगे नहीं आप, नहीं भागेंगे नहीं आप। आपने कहा कि रात भर बात करूंगा, आपको घर से निकाल दिया गया है, आप भागेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब सुनिए, 5 मिनट खामोश हो जाएगा वरना आप। हाँ सुनाइए। अरे सुनाइए, शिकस्त से तुम्हारे जिंदगी में कोई नहीं दे सकता। एतराज करते हैं, चुप तो करोगे? इस इबारत को लेकर ये लोग एतराज करते हैं। अब चाहे तो इसे इल्जाम कह लें या ये कह लें कि इनकी समझ में आज तक ये इबारत नहीं आई है। इस इबारत का सही मतलब तुम समझा दो ना, तुम्हारी समझ में आई तो तुम समझाओ जल्दी। बेवकूफ कहीं के बोले तो उनको क्यों समझाना, हमको समझाओ ना। घंटा हो गया, उधर क्यों घुस रहे हो? तैयार नहीं हो रहा, बेवकूफ कहीं का। चिल्ला क्यों ना इधर उधर है, बिना मुझे इधर उधर घुसे हो क्यों? नहीं रहते, सुन फिर आराम। चैलेंज करते हो और जवाब नहीं देते हो, जवाब देने के टाइम पर इधर उधर भागते हो। बात करो ना, क्या सुन करिए भाई, तेरे से कह रहा हूँ। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, यहाँ पर जवाब दो, जवाब दो। चलो सुन आराम से फिर। हाँ सुनाओ। अरे सुन नहीं बोलना, सुन नहीं बोलना, नहीं तो फिर मैं बदतमीजी पर आऊंगा ना, तो फिर सोचोगे कि क्या हो रहा है। आराम से खामोश क्यों नहीं हो रहे हो आप? आपके अंदर असल। हाँ ऐसे बोलो, हाँ ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। बड़ा हूँ तुमसे, अदब किया करो मेरा, उम्र में भी बड़ा हूँ। चलो बोलो। अब बिल्कुल मत बोलना बीच में, जो मैं बोल रहा हूँ बोल देना, जब मैं खामोश रहूंगा तब बोल देना। चलो बोलो, ठीक है। उसको बोलना बीच में, अगर तुमने बोला तो बस बात यहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाए, खत्म हो जाएगा। तुम बीच में कुछ, अरे तुम तो भागने का बहाना ढूंढ रहे हो बहुत देर से। तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं। अरे भागने का बहाना है तुम्हारा ये, अब तो भागोगे मुझे मालूम है। चलो बोलो। मैं 5 मिनट अगर बीच में बोलना मत बिल्कुल। तुम भागने का बहाना ढूंढ रहे हो, मुझे मालूम है तुम भागोगे। तुम्हारा हर मौलवी ऐसे ही भागता है। चलो बताओ, बोलो। करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं कि इल्जाम नहीं है, खुली हकीकत है। फिर बोला तू यार, फिर बोलते हो तुम। अरे खुली हकीकत तो तुम इल्जाम बोल रहे हो यार। 5 मिनट के बाद बोल देना, 5 मिनट अपने मुंह पे जुबान पर ताला लगा लो 5 मिनट। तो लेकिन खुली हकीकत पे इल्जाम कैसे बोलोगे? आप बोलोगे जो हमारी किताब में लिखा हुआ है, ये लोग जो बताते हैं इसका माना ये नहीं है, ये ऐसा बोलिए। खामोश मुनाजिर का तरीका पता क्या होता है? अगर 5 मिनट बोला गया तो खामोश होगा 5। चलो बोलो 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 बोलो, ठीक है बोलो बोलो बोलो। इमारत के जरिए से ये हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, या यूं कहो कि आज तक इन उलमा तो गलत फहमी कर सकते। आवाज ही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है आप लोग। ठीक है, अब मैं आपको पूरी बात पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो जैद नाम जो शख्स था, उसके जरिए से सवाल किया गया था वहाँ शख्स कि वो पाक उलूम ग़ैबिय्या की वजह से नबी आपको आवाज आ रही है इस्राइल भाई? नहीं हजरत, आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है, से। अब्दुल रहमान साहब आवाज आ रही?
आवाज उनसे क्या मतलब आ रही कि नहीं आ रही है? अरे यार अब्दुल रहमान भाई हमसे बात कर रहे हो, अब्दुल रहमान से बात कर रहे हो यार? तो मैंने से पूछोगे अरे तो अल्लाह के बंदे यहाँ पर, अरे तो यहाँ आवाज नहीं आएगी तो कैसे समझ में आएगा लोगों के, बताओ ना। नेटवर्क में निकल जाओ ना बाहर को। हम तो नेटवर्क में है ना यार, हम तो नेटवर्क में, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो, रोड पर घूमते रहते हो, इधर उधर कहीं भी चले जाते हो। रोड पर तुम जो है तो टावर ढूंढो, कहीं पर टावर के नीचे खड़े हो जाओ आकर के, क्योंकि रोड पर तो हो तुम। ये देखिए तो सामीन का बयान किया गया था इसमें कि ज़ैद जो ये कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है कि वो ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे देखो जो तुम्हारी आवाज, सुनो सुनो फैजान, तुम्हारी जो आवाज नहीं आएगी ना फिर बाद में एतराज मत करना कि हमारी आवाज नहीं आई, क्योंकि आवाज यहाँ पर क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो रही है ना, बोलते जाओ। ठीक है बोलते जाएगी। बाद में तुम एतराज करोगे कि आवाज काट दी, तो आवाज काटी नहीं है, ये आवाज क्लियर नहीं हो रही तुम्हारी, है ना? जी जी घर पे जाता हूँ जी भाई, ऑलरेडी 1-1.25 घंटा हो चुका है। हाँ, और अभी तक आपने इबारत पर बात ही नहीं करी, इधर उधर ही भागते रहे आप। 1-1.25 घंटे तक आप इधर उधर भागते रहे। इबारत ही पढ़ रहा हूँ। इबारत पर बात कर लेते तो अभी तक मसला हल हो जाता, लेकिन आप इंतजार खत्म नहीं करना चाहते हैं, आप इंतजार बनाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो कुछ पढ़ूंगा ना मैं। तो तुम जब पढ़ रहे हो आवाज क्यों नहीं आ रही है? तुम कहाँ घुस जा रहे हो? घर से बाहर निकलो ना भाई, तुम निकलो ना घर से बाहर अपने। अरे मैं घर के बाहर ही, अभी तो बराबर आवाज आ रही है सारी, इबारत पढ़ो तभी ऐसा हो रहा है। तुम्हारे वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। 15,000 स्क्वायर फीट की छत पे बैठा हूं। बेहतरीन है, अच्छी आवाज आ रही है सारी। फिर बोले ये देखो अब्दुल रहमान को फिर मना करो, फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं गलत बात है नहीं, मत बोलिए ना यार। अरे मैंने नहीं बोला, तेरे राहिल खान ने बोला, कानों में में डाल दिया है क्या? अब तो बोला आयतल कुर्सी पहुंच देंगे। देखो आप गलत लफ्ज बोलोगे ना, देखो अब्दुल शैतान गलत अंदाज में बोलोगे ना तो फिर मैं बहुत गलत बोलूंगा तुम्हें, ठीक है? अरे तेरी नस्ल ही आला कुत्ते की है, तू नस्ल ही बोलेगा। ये देखो फैजान देख ले, फैजान देख ले इसको, फैजान देख ले इसको, फैजान देख ले इसको, फैजान देख ले इसको, भागने का तरीका ढूंढ रहा है ये। ऐसी बात ना। हाँ ये भागने का तरीका ढूंढ रहा है, इसका मुंह में, इसके मुंह के अंदर कपड़ा चूस देना तू। कपड़ा क्यों नहीं चूसता? बार बार बोलता है ये हाथ कर मां इसके मुंह में कपड़ा चूस, सुनने का काम है। सुन, जब तेरे पे सवाल का जवाब नहीं सुना जा रहा तो तू भाग रहा है, तू बदतमीजी को कर रहा है। जब हमने अरे तो ये बदतमीजी कर रहा है ना, कितनी देर से तुझे मना कर रहा हूँ कि इसको खामोश करवा, तू बोलता क्यों नहीं इसको खामोश करने के लिए? मरदूद इंसान कहीं के, ये वकूफ कहीं का, जाहिल कहीं के, बदतमीज बेगैरत इंसान। जुबान पे लगा दो वरना नीचे मसल देंगे। इतनी देर से वो बोल रहा है, उसके मुंह में कपड़ा चूस, उसको बिठा हाथ कर बांध करके। जबान के सारे टेस्ट बट मर जाएंगे, मीठे खट्टे का टेस्ट नहीं आएगा। मरदूदो दो होकर के आते हुए, एक खानवी और एक गंगोई और नानोत्वी। ये नानोत्वी को साथ में लाया कि गंगोई को साथ लाया? किसको लाया साथ में? और तू नानोत्वी है कि गंगोई है? कौन सा अमल करता है? लूटी है तुम लोग, बेहया कहीं का, बेवकूफ, बात करता नहीं, इधर उधर कही जाता है, बीच में बोला जाता है। अब्दुल शैतान, वो अब्दुल शैतान अगर यहाँ सामने होता ना, हकीकत कह रहा हूँ, उसके पिछवाड़े को लाल कर देता मार मार के। इधर सामने, अगर हिम्मत सामने आ। अरे कहाँ रहता है तू बताओ? सामने आ। हाँ चल तू सामने आ, कहाँ पर है? चला, कहाँ पर बुला रहे हैं? बेंगलुरु आ जा। बेंगलुरु में हूँ, अगर दम है तो सामने अशफाक। हाँ तो चल तू जो है तो मेरा क्या बोलते, जो टिकट करवा कल से, चल टिकट करवा मेरा, अपना एड्रेस का, वोटर आईडी कार्ड की कॉपी भेज, तेरा एड्रेस भेज, टिकट करवा, तेरा एड्रेस भेज, तेरा मेरा टिकट करवा, मेरी जरूरत पूरी कर, रहने का इंतजाम करा रहा हूँ मैं। हाँ कर करवा, कल की करवा। चुप करवाओ, मौलवी बात करो, चुप करो, बीच में बात करो, इसका मुंह बंद करवा। अभी इसका अब्दुल शैतान होगा, अब्दुल शैतान लगातार बोला चला जा रहा है। अब्दुल शैतान, तू शैतान को सलाम करता होगा, शैतान को साथ में लेकर आया है, ये हया कहीं का बात कर इधर से। चलो फैजान अबे धमकी किसी और को देना बेटा, तेरे जैसे न जाने कितने देखे। चल तू हमें धमकी दे रहा है, तेरी आवाज देखने कैसी लग रही है, बिल्कुल गंगोई की तरह, नानोदी की तरह, बिल्कुल सुनानी आवाज है, नानोदी की तरह तो आवाज है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? फैजान को तेरा मामला टाका बड़ा हुआ है, तुझे जैसे गंगोई और नानोदी का टाका बड़ा हुआ है, ऐसे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या किया तूने? अबे उमेर, अबे वो कादिया क्या बात करेगा, ऐसे भागा वो भी, तू भी ऐसे भाग रहा है। भाग मत, बात करनी है कि नहीं? बात कर, भाग मत फैजान, भागना नहीं। चलो फैजान स्टार्ट।
स्टार्ट करो। अबे चल बे, क्या स्टार्ट करूँ? कह रहे थे घंटे से कह रहा हूँ मैं। हजरत इसको भागने का बहाना मिल गया। खामोश हो जा। भागने का बहाना मिल गया है, फैजान को भागने का बहाना मिल चुका है, फैजान को भागने का बहाना मिल चुका है, फैजान भागने के बहाने ढूंढ रहा है। बहुत तबीयत से ठुकाई हुई है, मजा आ गया बाखुदा। फैजान भागने का बहाना ढूंढ रहा है। ठीक है 5 मिनट खामोश रहेगा, मैं भी इबारत पढ़ रहा हूँ। फैजान मैं खामोश रहूंगा। सुन, अच्छा एक मिनट, हाँ बिल्कुल मैं खामोश रहूंगा, पहले मेरी बात सुन। मैं खामोश रहूंगा, पहले मेरी बात सुन। मैं खामोश रहूंगा, मेरी बात सुन। नहीं, मेरी बात सुनना पड़ेगी, फिर खामोश रहूंगा। पहले मेरी बात सुन। तू अब्दुल शैतान के मुंह में कपड़ा ठूस, उसके हाथ पैर बांध, उसको खामोश कर, फिर बात कर। तो अपनी गंदी जुबान बंद कर ले। अब्दुल शैतान के मुंह में कपड़ा ठूस, कपड़ा नहीं हो तो कुछ और ठूस दे। अबे गंदी जुबान बंद कर। वैसे भी जनाना ही दिख रहा है, वो एक नंबर का नानोत भी दिख रहा है वो। अगर तू मुनाजिर है, हाँ, अगर तू मुनाजिर, गंगोई नानोत भी का दोनों आ गए यहाँ पर नाना है। 5 मिनट चल सुना, चल फैजान, चल सुना, फैजान सुना, चलो फैजान बोलो, चल फैजान बोलो, ठीक है फैजान बोलो, चुप रहना, फैजान बोलो, ठीक है। हाँ बोलो। मैं अभी 3 मिनट में सिर्फ 5 सफा कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल। हाँ फैजान बोलो, बिल्कुल भागो नहीं फैजान बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इस इबारत को लेकर इनके मौलवियों ने अब तक हमारे ऊपर सिर्फ झूठे इल्जाम लगाए हैं, और उसकी वजह यह है, आपने देख भी लिया कि इन लोगों को आज तक हमारी इबारत का सही मतलब समझ में ही नहीं आया है। ये सब फालतू बातें कर रहे हो तुम, ये फालतू बातें कर रहे हो। जब जवाब पे तो ये फालतू बातें कर रहे हो ना, मैं ऐसा बोलूंगा तो आप सुनोगे? तू बहुत बड़ा बेगैरत इंसान है यार। मैं ऐसा बोलूंगा तो आप सुनोगे? क्यों सुनोगे आप? तो आप बात करो ना, आप मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हो? आप कह रहे समझ में नहीं आया, समझा दिया हमने अच्छी तरह से। चुप हो जाना, क्यों बोले जा रहा है? चुप हो जाना, तो जैसे मुझको कह रहे चुप हो जाना, ऐसे उसको कह देना चुप हो जाना। तलब कर रहे हैं तो वजाहत नहीं देता, अब यहाँ बकचोदी करे जा रहा है बीच में, बोल गाड़ी पकड़ा है, गाड़ी पकड़ा है, गाड़ी पकड़ा है, गाड़ी पकड़ा है, गाड़ी पर आ गया, भाग आओ, गाड़ी पर आ गया, डेढ़ का सामीन ये है मुनाजिर। नहीं ये लो भाई, गाड़ी पकड़ा है। अब्दुलरहमान चुप हो जाए, ढक्कन इसको चुप करो यार, अब्दुलरहमान को इसको यहाँ कुर्सी पढ़ के दम कर दें, शैतान अभी जाया हो जाएगा। हाँ यार, शैतान को तकलीफ होती है ना, कुरान हदीस तकलीफ होती है, शैतान खुद को माना हुआ है। अबे तो ये कुरान हदीस पढ़ रहा है तू, गाड़ी पक रहा है, कुरान हदीस से मादलना है। अबे सुने भाई, सुन, चुप कर, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, पिछले आधे घंटे से गाली पक रहा है और कह रहा जवाब दे रहा हूँ। कौन बकचोदी करना कौन सा गलत है? अबे गाली है ना, अबे गाली है ना, ये गाली है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अबे यार कैसा बेवली है, कभी शैतान को सलाम करता है, कभी मतलब माशाल्लाह शैतान को अच्छा हुआ देखता है, कभी गाली देता है, और गाली को कहता है गाली नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं है ना हमारे। अरे यार बकचोदिया बोलना गाली नहीं है। अच्छा, मतलब तुम अपने अम्मा अब्बा से भी यही बोलते हो भाई? और से आम देखा जाएगा, और से आम में तो गाली है ये। अरे तुम्हारा उर्फ़े आम वहाँ है, हमारा अपने अम्मा अब्बा से भी यही कहते हो? तुम्हारे अब्बा तुमको किसी काम के लिए बुला रहे हो तो तुम कहते हो यही लफ्ज बोलते हो? भाई तू अपने पास, ये देखिए फिर ये भी शुरू हुआ। देखो अब्दुल शैतान को खामोश कर, ये अब्दुल शैतान को खामोश करे यार, ये तुम पे कई मरतबा पैर रखा है ना हज़रत, तो ये हमसे चिढ़ा हुआ है। हाँ, ये अब्दुल शैतान को खामोश करो यार, अब्दुल शैतान खामोश रहे यार। अब्दुल शैतान तेरे से बाद में बात करूंगा मैं, अब्दुल शैतान को एक दिन दूसरे दिन कॉल पर लेंगे, उसकी बात करेंगे, लेकिन अब्दुल शैतान करेगा मेरे से, डर गया है, मर गया है, अब्दुल शैतान से बाद में बात करेंगे। अब्दुल शैतान तेरे से बाद में बात करेंगे, अब्दुल शैतान तेरे से कल बात करेंगे, अरे बाद में बात करेंगे, फिर बात कर लेंगे। अब्दुल शैतान तेरे से बाद में बात कर लेंगे, अब्दुल शैतान तेरे से बाद में बात करेंगे। चुप कराओगे भैया कि नहीं यार? फैजान चुप नहीं करवा रहे यार, फैजान चुप नहीं करवा रहे। अच्छा हैरत की बात है कि अब्दुल शैतान बोलता है ना, फैजान एकदम चुप हो जाता है। चुप हो जाता है, चुप क्यों नहीं होगा? नानोतवी को देखकर गंगोई चुप तो होता है। तुमसे मैं वक्त तय करा रहा हूँ, नानोतवी बोलेगा तो गंगोई कैसे बोल पाएगा कि चुप हो जाओ बेगम? तेरे को जवाब सुनना है या नहीं सुनना? चलो रेडी, जवाब सुनना है या नहीं सुनना? बोलो स्टार्ट। सुनाओ। बीच में अब अब्दुल शैतान को खामोश करना है, वो फिर बोलता है, बीच में बोले जाता है मार। ठीक, अब चुप रहना। तो बोलता तो है यार, तुमने इतनी देर की रिकॉर्डिंग में एक बार भी ये नहीं कहा कि अब्दुल शैतान खामोश हो जाओ, तुमने नहीं कहा। तब मैं बोलूंगा, मैंने राहिल खान बोला, जब भाई मेरा बात कर चुके हो, मेरा 1.5 घंटा। राहिल खान, हाँ राहिल खान जो बोल रहे हैं, राहिल खान वो मुझसे बोल रहे हैं जो भी बोलना है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहा है भाई? तुम कौन हो? तुमसे तो बात ही नहीं हुई। अरे तू होता कौन है बोलने वाला, जब तेरा नाम ही कहीं से नहीं था, जबरदस्ती पैदा हो गया यार। जबरदस्ती मतलब जो है तो ध्वजा को साथ ले आए तुम। क्या?
2005 ले आए जबरदस्ती। सुन बोलो। अबे तेरा राहिल जो इतना बड़ा झूठा है, कल तू यहाँ पे था नहीं, तू कहीं लिंक पर नहीं था। तेरा अब्दुल्ला कह रहा है कि तू कल कहीं गया हुआ था, और राहिल कह रहा है कि तू कल क्यों नहीं आता भाई 10 बजे। चल मैंने SMS पे बोल दिया था, इबारत पे बात कर, बहाने ना बना। इबारत पे बात कर, बहाने ना बना। ठीक है, इबारत पढ़ रहा हूँ, सुन। चल इबारत पढ़ो। अब अगर 5 मिनट से पहले बोला ना तो तेरी हार शिकस्त साबित हो जाएगी। ठीक है, जबरदस्ती हो जाएगी। कौन से कहाँ कानून में लिखा है? जबरदस्ती हार हो जाएगी। ये तो पता लग रहा है लोगों को किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई। हार हो जाएगी, जबरदस्ती अपने आप को मुनासिब मान लेगा। ये 5 मिनट का वक्त नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि 5 मिनट के अंदर ही इसको चांद नजर आने वाले हैं। अब मैं इबारत पर आता हूँ, इबारत को बात करता हूँ। मैं आपको इबारत बता देता हूँ। इबारत सिंपल सी बात ये है कि ज़ैद के आखिर ये था कि वो बाज़ उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा था। तो इसकी नफी करते हुए मौलाना शफी थानवी साहब ने जवाब दिया है कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं, यानी बाज़ उलूम गैब की वजह से वो ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म तो यानी बाज़ इल्म गैब तो चुप रहे, माज़अल्लाह मत बोल। तेरी किताबों से तू मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, माज़अल्लाह भी नहीं बोलूंगा। चल पढ़ तू। जाहिल चुप रहेगा तू, बहुत बड़ा माज़अल्लाह बोल रहा हूँ ना। चल ठीक है, माज़अल्लाह। अबे तो माज़अल्लाह बोल रहा, तुझे कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ, तू पढ़ना। बोल चुप। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, माज़अल्लाह नहीं बोलूँ? तो फिर आगे थानवी साहब ने लिखा है, आगे लिखा है कि ऐसा इल्म है तो यानी बाज़ मुतलक कैसा, मैं पूछना चाहूंगा कैसा, क्या कहना चाह रहा है? कितना मैं पूछना चाहूंगा कैसा इल्म गैब? ऐसा इल्म गैब से मुराद कैसा इल्म गैब? तशबीह पर बात चल रही है। जब बात कैसा इल्म गैब, कैसा इल्म गैब ये बता। कैसा कहाँ से लेके लफ्ज़ कैसा है कहाँ इसमें लफ्ज़? ये अभी तो तूने बोला कि ऐसा, मैंने कहा हमें, मैं पूछ रहा हूँ ना, तूने बोला ऐसा इल्म गैब, तो मैं पूछ रहा हूँ कैसा इल्म गैब। अच्छा, ऐसा इल्म गैब से क्या मुराद? ऐसा इल्म गैब से क्या मुराद? कैसा इल्म गैब? ऐसा से यानी बाज़ मुतलक उलूम गैबिया, ऐसा से मुराद बाज़ मुतलक उलूम गैबिया, समझ लिया? ऐसा इल्म गैब बाज़ मुतलक उलूम गैबिया ज़ैद व अम्र को भी है, समझ लिया? हाँ, अरे बाज़ मुतलक उलूम गैबिया ज़ैद व अम्र को भी है, ऐसा से मुराद ये है। हाँ ऐसा तो मुराद ये है। ऐसा से मुराद बाज़ मुतलक उलूम गैबिया। जी, मुतलक उलूम गैबिया। अच्छा, मुतलक उलूम गैबिया, क्योंकि बाज़ इल्म पर ही बात चल रही है। अच्छा, उलूम ऐसा इल्म गैब ज़ैद, उमर, बकर और बहाइम यानी जानवरों को भी है। ठीक है, ये ज़ैद कौन है? तो ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद, उमर। सवाल करने वाला जो ज़ैद आया था वही है पागल, बल्कि जमी हयानत। अरे ये जो सवाल करने वाला ज़ैद आया था वही ज़ैद है। किसी न किसी, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से छुपा हुआ होता है। तो साबित ये हुआ कि अगर बाज़ उलूम गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है तो मुतलक कुछ न कुछ इल्म गैब तो हर इंसान को है। तो फिर ज़ैद के अकीदे के मुताबिक चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए और कुछ ना कुछ इल्म गैब। एक मिनट फैजान लाजिम आएगा, जिसकी नफी की है। तो अब सामीन हो गई बात को बदलते हुए हो गई अभी नहीं हुई अभी नहीं हुई। क्यों बोल रहा है भाई? सुना मेरी बात ही खराब कर दी बीच में बोल के। जब मैं बोल रहा हूँ क्यों सुनाना तूने सारी बात खराब कर दी बीच में बोल के। अबे सुनाना यार, क्यों खराब कर दी? क्या मैंने, अबे तू क्या बोलते चावल चुन रहा था क्या जो मैंने मिला दिया दोनों? सुनाऊंगा मैं यार, कुछ भी बातें करता है, बात खराब कर दी। चावल चुन रहा था जो मिला दिया मैंने, तेरे को इबारत से बढ़ के बता रहा हूँ। तो सामने अबे कहीं अबे नालायक, तू मुझे खबीज बोल रहा है। अभी तूने सलाम किया मुझे, अभी तूने सलाम किया मुझे। बीच में अभी इबारत की बात तो इबारत, तो फिर इबारत पर आना, तो भूल कैसे गया? क्या मैंने चावल मिला दिए थे क्या पूरे? मैं तो इबारत ही पढ़ रहा हूँ। तो मैंने वजाहत कर दी। सामीन आपने क्या वजाहत कर दी? इसमें क्या वजाहत कर दी? मैं आ रहा हूँ ना वापस। हाँ, क्या वजाहत करी? गुलाम लगाऊंगा, 12 वजाहत करूंगा तेरे सामने में, ये बता। अरे तो भाई वजाहत तो, अरे भाई बाप का गुलाम, किसी का ईमान बचाना है ना तुझे। मैंने वजाहत, तो तबलीग करता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच चुका है जिसका ईमान। तो तबलीग कर रहा है ना, तू चल ईमान बचाना, बोलना, समझाना, बाप को नौकर और ये इस तरह की जुमले इस्तेमाल कर रहा है। भाग रहे हो? राहिल भाई भाग गया जी, राहिल भाई भाग गया जी इबारत पर बात ही नहीं किया, कोई सवाल नहीं, भाग गया जी हजरत, भाग गया बंद कर दिया। यहीं पर मौजूद हूँ, अभी यहीं पर मौजूद हूँ मैं। कहाँ पर मौजूद हो? बाहर या मतलब घर में मौजूद? अभी मैं अच्छा चल सुना,
हाँ तो सुना ना, मैं कम मना कर रहा हूँ यार। सलमान भाई मैंने पढ़ करके बता दी, ठीक है ना? अब मैं बोलूँ? पढ़ करके बता देता हूँ। अब मैं बोलूँ? भाई तुम्हारा, अरे तो भाई तूने बोल दिया, पढ़कर बता दिया, मुझे बोलने तो दे। बोल के, अरे भाई मैं ही तो बोलूंगा ना, मुझे एतराज है ना उस पर। अरे मुझे एतराज है ना उस पर, मैं बोलूंगा ना। अरे भाई तूने एतराज था, तुमने इबारत पढ़ दी, ठीक है? तूने जो पढ़ा मुझे उस पर एतराज है, तूने जो पढ़ा मुझे उस पर एतराज है। वो गलत इबारत पढ़ी तूने, गलत बात पढ़ी। कहाँ गलत इबारत पढ़ी मैंने? हाँ तो बोलने देना। बात कर रहा हूँ ना मैं तो, सुन तू बोलने तो दे नहीं दिया तू। चल अब गलत साबित कर दे। हाँ मैं गलत साबित करूंगा ना। मैं बता रहा हूँ कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है। कैसे गुस्ताखी है, इस बात की वजाहत कर। हाँ यही मैं साबित कर रहा हूँ। उसने कहा कि वो थानवी साहब ने, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने कहा कि बाज उलूम गैबिया मुराद, अगर इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब, अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खासियत नहीं है। वो कह रहा है बाज उलूम गैबिया में ऐसा इल्म गैब, ऐसा इल्म गैब है ना। मिसाल देकर समझा रहा हूँ मैं ताकि सामीन भी समझ ले, है ना? ठीक है, मैं भी मिसाल देकर समझा रहा हूँ ताकि सामीन समझ ले। ठीक यार देखो, एक मिनट सुन लो चुपचाप, है ना? हाँ मिसाल देकर समझा रहा हूँ ताकि सामीन समझ ले। चुपचाप यार सुन तो लो यार, फालतू बातें मत करो ना। मिसाल देकर समझा रहा हूँ। तो दरियाफ्त है कि जैद कहे हजरत इस्माइल दहलवी व जनाब गंगोही व जनाब नानोती व जनाब थानवी साहिबान हर एक साहिब बेनजीर है। इस पर कोई बेबाक बोल उठे कि अगर बेनजीर से ये मुराद है कि ये लोग माज़अल्लाह अल्लाह की तरह वाहदहू ला शरीक है, जब तो इसका बुतलान दलील अकली व नकली से जाहिर। और अगर ये मुराद के उनमें से हर एक के पीछे सुन ले यार सुन तो सही यार, मैं वो दे रहा हूँ ना। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ बेटा। अरे जवाब तेरी इबारत पढ़ रहे हैं ना। अब ये जवाब है। अरे भाई उस इबारत का जवाब दे रहा हूँ मैं। तू कह रहा ना कि उसमें गुस्ताखी नहीं है, मैं गुस्ताखी बता रहा हूँ, मैं गुस्ताखी बता रहा हूँ मिसाल दे करके। सामने मिसाल समझिए। अरे भाई गुस्ताखी बता रहा हूँ ना, वही तो मिसाल से समझ में आ जाएगा ना, मिसाल से समझ में आ जाएगा ना। वही तो कह रहा हूँ यार, तो सुनो तो सही। लिहाजा और दरियाफ्त है कि जैद कहे हजरत इस्माइल दहली व जनाबी गंगोही व जनाबी नानोती व जनाबी थानवी साहिबान हर एक साहिब बेनजीर है। इस पर अगर कोई बेबाक बोल उठे कि अगर बेनजीर से ये मुराद कि ये लोग माज़अल्लाह अल्लाह की तरह वाहदहू ला शरीक लहू है, जब तो इसका बुतलान दलील अकली व नकली से जाहिर है। और अगर ये मुराद के उनमें से हर एक के पीछे दफ़े निजासत का एक एक रास्ता है, तो इसमें उनकी क्या तख्सीस है। ऐसा सुराख, ये सुराख तो हर कुत्ते सूवर के होता है, तो चाहिए कि सबको बेनजीर कहा जाए। फिर अगर जैद इसका इंतजाम करे कि हाँ मैं हर कुत्ते सूवर को भी बेनजीर कहूंगा, तो बेनजीर कहने में इन साहिबों का क्या कमाल हुआ जिसमें कुत्ते सूवर तक शरीक है। और अगर इंतजाम न किया जाए तो जनाब इस्माइल दहलवी गंगोही नानोतवी थानवी और कुत्ते सूवर में वजह फर्क बयान करना जरूर है। बात समझ में आई? हेलो, समझा रही है इसकी वजाहत। गुस्ताखी समझ में आई? आवाम को इस तरीके गुस्ताखी समझ में आई? अगर कोई आदमी इस तरह बोले, अच्छा अगर कोई आदमी इस तरह बोले तो आपके थानवी साहब को सुराख है कि नहीं है? अरे यार एक मिनट, कोई आदमी अगर इस तरह बोले तो आपके थानवी साहब, गंगोही साहब, नानोती साहब, अम्बेडवी साहब, इस्माइल दहलवी साहब को ये सुराख है कि नहीं पीछे, जैसे कुत्ते सुअर बिल्ली को होता है? फिर आगे बोलो, है कि नहीं, सुराख है कि नहीं? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यही बोली जब इस तरह बोली जाएगी तो ये बोली तेरे मौलवियों के नजदीक, ये तुम्हारे नजदीक अपने मौलवियों के सामने गुस्ताखी होगी। और यही बोली जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम लोग बोल रहे हो तो तुम्हें गुस्ताखी नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो गया? हाँ हो गया। अभी क्या हुआ? होगा तो नाम रखने के लिए बुलाएंगे। हो गया ना? अरे बुलाएंगे ना नाम रखने के लिए जब होगा तो। अभी नहीं हुआ। ठीक है वैसे जब बुलाएंगे दावत देकर। ठीक है, अब मैंने चुपचाप सुनी है तुम्हारी बात। हाँ बिल्कुल सुनी, मेरी बात सुनना। सुनाओ। ठीक है सामीन, इन लोगों का काम सिर्फ बातों को घुमाना होता है, सिंपल और सादी सी बात। जो मैंने जितनी बात करी तो मैंने डायरेक्ट बात करी, सामीन नहीं करा। मैं खामोश रहा था ना, बस खामोश थे बिल्कुल भाई। ठीक है, तो सामीन, इन लोगों का काम सिर्फ सीधी सादी इबारत को गलत तरीके से घुमा फिरा करके बना करके पेश करना और अवाम को बलगलाना इनका मकसद होता है। इस इबारत का सीधा साधा सा मकसद ये है। फिर तंबीहन बात कर दूं कि हर शख्स को किसी न किसी गैब का इल्म है। जन्नत और जहन्नम गैब के अंदर है और हम सबको मालूम है। ठीक है, यानी हमको भी गैब का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पहुंचा। ठीक है, चलिए माशाल्लाह, आज गैब इल्म गैब तो मान लिया आपने, ये बड़ी बात है। ठीक है,
ٹھیک ہے، ابھی سن لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب زید کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بعض علوم غیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعض علم دیا، کتنا علم دیا اس پر ہماری کوئی بحث نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کا علم وہ ذاتی ہے اور حضور کو اللہ نے مطلع کیا ہے بذریعہ وحی، تو لیکن ہے بعض، کل نہیں ہے۔ تو بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے زید جو ہے وہ عالم الغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، جبکہ عالم الغیب کا اطلاق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ پر ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے عبارت میں؟ یہ کہاں لکھا ہے عبارت میں وضاحت کر رہا ہوں نا، سن لو نا چپ کر کے۔ عبارت میں کہاں لکھا ہے؟ عبارت آپ پڑھو نا، وضاحت کیسے کر رہے ہو؟ کچھ بھی خلاصے کلام کر رہا ہوں نا، تو عبارت میں وہاں موجود نہیں ہے۔ اچھا یہ خلاصہ کلام تھانوی صاحب کہاں لکھے بول رہے ہو پھر؟ ایک منٹ، یہ خلاصہ کلام جو آپ کر رہے ہیں تھانوی صاحب کیے نہیں کر؟ بالکل تھانوی صاحب نے آگے بسط البنان کے اندر بالکل کیا خلاصہ ہے؟ یہی خلاصہ کلام کیا جو آپ نے کیا ہے، یہ کیا ہے تھانوی صاحب نے اپنی جو الزام تم نے لگایا اس سے بالکل رجوع، یہ خلاصہ کلام جو آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تھانوی صاحب نے کیا ہے کیا؟ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، تو پھر خلاصہ کلام تھانوی صاحب تو کیے نہیں تو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کیا کہا تنبیہن پہلے بات بتاؤں تاکہ آگے کی بات سمجھ میں آ جائے، سمجھ گئی؟ میں نے بولا ہے، سن لیجیے پروفیسر اچھے طریقے سے کہ عالم الغیب کا اطلاق تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اگر علم غیبیہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب کہیں گے تو پھر تو اس طریقے سے ہر شخص کو کسی نہ کسی غیب کی بات کا علم ہے، تو پھر زید کے مطابق تو زید، عمر، بکر وغیرہ کو بھی عالم الغیب کہا جائے گا، اور پہاڑی یعنی چیٹی کو بھی بارش آنے کا علم پہلے ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا میرا سوال ہے، چپ رہیں گے آپ، چپ رہیں گے آپ ابھی، ٹھیک ہے نا؟ بولیں بالکل، بات خراب نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ چلو تمہارے چاول بھی ملاؤں گا، کو بھی بعض علم غیب ہے، تو پھر زید کے مطابق تو چاہیے کہ چیٹی کو بھی عالم الغیب کہے، ٹھیک ہے نا؟ زید، عمر، بکر اور جتنے بھی ہیں ہم سب کو بھی عالم الغیب کہا جائے۔ تو جب زید کے عالم الغیب سب کو کہے گا تو اس سے ایک فساد لازم آ جائے گا، فساد یہ لازم آئے گا کہ آدمی مغالطے میں پڑ جائے گا کہ عالم الغیب اللہ ہے یا نہیں، اس طریقے سے بہت سارے فساد لازم آئیں گے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم یعنی اتنا علم، یعنی بعض علوم غیبیہ تو کتنا علم بھی ہیں۔ ایک منٹ کتنا علم؟ اتنا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جتنا ہے اتنا ایسا علم، بات سنو، اتنا یعنی اتنا بولا نا آپ نے، یعنی اتنا علم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم ہے آپ نے کہا نا اتنا علم، تم یہاں سے یہ جی ایسا علم یعنی اتنا علم، اور اتنا علم یعنی اتنا علم بولا آپ نے بولا یعنی اتنا علم، یعنی اتنا علم جتنا رسول اللہ کو ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ۔ آپ نے کہا یعنی اتنا علم، ایسا علم یعنی اتنا علم جیسا رسول اللہ کو ہے، بولا نا آپ نے۔ بات پیچھے ختم ہو چکی ہے حضور سے بھائی، ارے یار تسبیح تو اسی سے ہو رہی نا، آگے تسبیح تو میں ہی دے رہا ہوں نا، یعنی بات تسبیح تو اتنا علم، ایسا علم اتنا علم، آپ نے کہا یعنی اتنا علم، یعنی اتنا علم، ہاں تو کتنا علم جتنا رسول اللہ کو ہے، اتنا زید و عمرو کو بھی ہے۔ ہرگز غلط ہے، بالکل ہرگز غلط۔ آپ نے کہا نا اتنا علم، ابھی تو کہا آپ نے، آپ کہہ رہے ہیں اتنا، آپ ابھی کہا آپ نے کہ اتنا علم، یہی تو آپ لوگ آپ کہہ رہے ہیں اتنا علم، آپ کہہ رہے ہیں نا اتنا علم۔ ارے تو کھلی ہوئی بولی ہے، کھلی ہوئی گستاخی ہے، اس کھلی ہوئی گستاخی کو مسلمان یوں سمجھے، جتنے سامعین ہیں وہ یوں سمجھے، مطلب سمجھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ مطلق کسے کہتے ہیں؟ ارے تم نے اتنا بولا، 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 کوانٹٹی ناپو گے، تم نے اتنا بولا۔ ارے ہاں بالکل کوانٹٹی ناپیں گے، اتنا بولو گے تو کیوں آپ ہم گمراہ کر رہے ہو؟ ارے یار کیوں گمراہ نہیں، گمراہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ تو کھلی کھلی بولی بول رہا ہو تم اور کہہ رہے گمراہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کھلی ہوئی بولی بولی اور کہا کہ اتنا یعنی کر کے اتنا بھی بتا دیا، یعنی کر کے اتنا بھی بتا دیا، تو تم نے تسبیح تو کر دی، تسبیح تو دی، تسبیح تو دی رسول اللہ کے علم سے۔ میں کیسے بولنے دوں گا جب تم میرے آقا کی شان میں گستاخی کرو گے، جب میرے آقا کی شان میں تم گستاخی کرو گے تو میں کیسے بولنے دوں گا تم کو؟ تم نے تسبیح دی ہے، تم نے تسبیح دی، تم نے تسبیح کیوں دی؟ تم نے کہا اتنا، ارے معاذ اللہ منہ کی کھائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں رسول اللہ کی حمایت کر رہا ہوں، تو تھانوی کی حمایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے منہ کی کھایا، ارے میں نے حضور سرور کائنات کی حمایت کری ہے، تو نے کہا اتنا، تو نے کہا اتنا، تو نے کہا اتنا، تو نے کہا اتنا، کتنا علم؟ جب عبارت ہماری ہے تو وضاحت بھی تو ہماری ہوگی نا، تو وضاحت تو رسول اللہ کے لیے اتنا علم مانتا ہے جتنا زید و عمرو کو ہے، جتنا زید و عمرو کا اتنا رسول اللہ کو مانتا ہے۔ ابھی رسول اللہ کو اتنا علم مانے گا جتنا زید و عمرو کا ہے، ابھی رسول اللہ کو اتنا علم مانے گا جتنا زید و عمرو کا ہے۔ عبارت مولانا تھانوی صاحب کی ہے، یہ عبارت مولانا، ارے یہ عبارت تو تھانوی نے کب بولا یہ بات وہ بتا، چل تھانوی کی ہے نا، تو تھانوی نے کب بولا یہ وہ بتا،
मौलाना तो थानवी वजाहत करे ना, तो तू वजाहत कैसे करेगा? लो तुम मानते हो तो बस्तुल बनान की इबारत जो वहाँ से भी थानवी साहब की है उसको मानते हो। अबे तू पहले इस पर बात कर यार तू पहले इस पर बात कर। तू पहले नहीं भाग मत कभी नहीं भाग मत नहीं कर सकते। नहीं भाग मत नहीं भाग मत देख भाग मत जाए मुझसे बात भाग मत अब ये अब भाग रहा है तो जवाब नहीं दे रहा है, तो जवाब नहीं भाग रहे हैं, इसको भाग रहा है, तो भाग गया। समझा दिया लेकिन भाग मत तो कबूल भाग मत मैं बताता हूँ ना कैसे समझाया तूने कहा ठीक है बता कि ऐसा इल्म गैब को इतना कहा तूने, इतना इल्म गैब। अरे पढ़ना तू इबारत पढ़ के वाज़े कर, दलील से वाज़े। तूने इतना कहा कि नहीं बता। तुझे क्या एतराज हो रहा है सो वाज़े कर, तुझे क्या एतराज हो रहा है? अरे वाह यार तूने इतना कहा, तू बात कर, तेरे से बात नहीं करूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता क्या तू ये क्या ठीक है गैब का इल्म सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म है इतना किसी को नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म है इतना किसी को नहीं है। तो बात ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी को भी नहीं है। मुतलक जितना इल्म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना किसी को भी नहीं है। और तूने ये कहा कि इतना इल्म, ऐसा को इतना कहा तूने, ऐसा यानी इतना। इबारत पढ़ पहले, चल इबारत पढ़। तूने कहा हाँ मैं इबारत पढ़ रहा हूँ आपको। सुनना पढ़ने देना है, क्या तखसीस है? तूने बोला पढ़ने देना, कहा कि ऐसा इल्म तो नबी पढ़ने तो दे। बात कहाँ पूरी हो गई? कि बाद इल्म गैब जो है दीगर इंसानों को है या नहीं है? बाज़ उलूम गैबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना उतना किसी को है नहीं। तो तूने कहा ना कि इतना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितना इल्म तो किसी को नहीं है, लेकिन तो तूने अभी यही तो कहा कि ऐसा यानी इतना, ये यार जाहिल कौन है? वो तो दुनिया जान रही है। मैं हुजूर सरवरे कायनात की हिमायत कर रहा हूँ, कुछ थानवी की हिमायत कर रहा है। जाहिल कौन है? दुनिया जानेगी। मैं रसूलुल्लाह के बारे में बोल रहा हूँ। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान कर रहा हूँ, तो थानवी की हिमायत कर रहा है। पता लगेगा कि कौन मुसलमान है। बिल्कुल हम हक की हिमायत, बिल्कुल पता लगेगा कि कौन मुसलमान है। तू थानवी की हिमायत कर रहा है। तू कह रहा है कि ऐसा का माना इतना है, ऐसा इतना तूने कहा, ऐसा को इतना कहा ना तूने, तो सुन तो ले। सुना तो है नहीं तूने। तू लुगात का हवाला भाग गया, तू भाग लुगात मत भाग, तू यही रहे, कहीं मत भाग। तू फंस गया, तू कहीं मत भाग। तू लुगात का हवाला मत दे, यही बैठ। ये खुद तू फंस गया, तुझे लुगात का तू फंस गया। तू जवाब सुन मेरे से, तू फंस गया। क्या सुनूं? तू हवाला दे, चल जवाब सुन, हवाला दे दे मेरे को। तू जवाब सुन मेरे से, हवाला तू जवाब सुन। हाँ सुना, बोलूं? हाँ खामोश सुन। थानवी ने लिखा है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है ना, कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। और अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है? फिर उसने लिखा कि ऐसा इल्म गैब, और तूने कहा ऐसा मतलब इतना, ऐसा यानी इतना। तूने कहा ऐसा यानी इतना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तफसीर है? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब मिला है उसकी कोई खासियत नहीं है। इतना इल्म गैब तो ज़्यादा अम्र, बल्कि हर सभी उम्मतों को हासिल है। तू ये कह रहा है इतना इल्म गैब रसूलुल्लाह का जितना है। हाँ बात पूरी हो गई। इतना इल्म गैब तूने कहा। चुप तो करोगे अब सामईन? अरे तो यार मेरी पूरी बात तो सुन लिया, अगर बड़ करना शुरू कर देता होती है। उसमें लिखा है कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है, यानी क्यों नहीं तखसीस है? मेरे आका की तखसीस है। तो है मेरे आका को जो इल्म गैब दिया गया है वो उसकी तखसीस है। कुरान उनके इल्म गैब पे खुतबे पढ़ रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तखसीस क्यों नहीं है? थानवी क्यों कह रहा है तखसीस नहीं है? थानवी क्यों कह रहा है तखसीस नहीं है? मुतलक बाद उलूम गैबिया मुराद है। फिर उसके बाद मुतलक नहीं, तूने बोला ऐसा, और मैंने ऐसा को तस्बीह कर रहा था, तूने कहा इतना तो क्लियर कर दिया। तूने तो क्लियर कर दिया इतना बोल करके जाओगे, लेकिन कभी ऐसा यानी इतना बोल दिया मर जाओगे। अगर तुम मर जाओगे जिंदगी पर साबित नहीं कर पाओगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम थानवी की हिमायत करते हो रसूलुल्लाह के मुकाबले में। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ करके थानवी की हिमायत करते हो। अरे यार तुम लोगों को लानत कितनी होगी, सोचो कि तुम रसूलुल्लाह सरवरे कायनात का कलमा पढ़ते हो और हिमायत थानवी की करते हो। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती? बेहया बेगैर को अगर खाते रसूलुल्लाह का हो
उनके सदके में दुनिया में जिंदगी जी रहे हो और थानवी की हिमायत कर रहे हो। अबे थानवी तुमको जन्नत में नहीं ले जाएगा, रसूलुल्लाह जन्नत में ले जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शफाअत करेंगे, हमारी शफाअत करेंगे, और तुम लोग थानवी के चक्कर में पड़े हुए, वो तो जहन्नम में जाएगा ही जाएगा, तुमको जहन्नम में लेकर के जाएगा। मरदूदो उसकी बोली खुली हुई बोली है, लेकिन ये खुली हुई बोली तेरी समझ में नहीं आ रही है, और तूने तो खुद ऐसा को इतना कह दिया क्लियर, और इसके बाद में खामोश बैठा हुआ है मरदूद। क्या बड़बड़ा रहा है, कुत्तों के जैसा भौंक रहा है, आला नस्ल का। ये देखो अब्दुल शैतान फिर आ गया, सुअर का बच्चा फिर बोला, अब्दुल शैतान फिर आ गया। अरे तू सुअर का बच्चे को भूख नहीं मिल रहा लग रहा खाने के लिए, सुअर का बच्चा बार बार भूख के मारे तड़प रहा है, ये बता। सुअर का बच्चा बार बार बोल रहा है। अरे राहिल भाई वो बहुत देर हो गई है, असल में गंगोई इधर बातचीत चल रही है ना गंगोई से। अरे सड़ी हुई लेकिन बाबूदा इतनी कायदे की आपने बजाई है, इनकी कसम खुदा की मजा आ गया आज, है ना। आज कसम खुदा की ऐसा शैतान, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। खुद को अपने ये वो नानोत्वी तड़प रहा है असल में इतनी देर से, बहुत देर से, क्योंकि क्या हुआ कि गंगोई इतनी देर से बातों में लगा हुआ है, नानोत्वी तड़प रहा है, मतलब मेरी तरफ ध्यान तो नहीं दे रहा है। अशफाक रज़ा ने खुद अपने आप को शैतान साबित किया। अल्लाह अकबर। सब रिकॉर्ड है, किसने किसको शैतान कहा, किसने शैतान को सलाम करा, किसने शैतान की तारीफ की, सब रिकॉर्ड है। अरे राहिल भाई मेरी बात सुनिए, आप खामोश रहिए। असल में क्या है, थोड़ी देर नानोत्वी को बोलने दीजिए। अच्छा गंगोई अब खामोश हो गया, आप तो सर आंखों पे हजरत। हाँ तो थोड़ी देर नानोत्वी को बोलने दीजिए। हाँ नानोत्वी बोलो तुम, जब तक कि गंगोई क्या कर रहे हो बताओ। रज़ा ने जो उठाकर चल, गंगोई क्या कर रहे हो वो बताओ, गंगोई क्या कर रहे हो वो बताओ, गंगोई क्या कर रहे हो बताओ, गंगोई क्या कर रहे हो वो बताओ। अच्छा तुम वही कर रहे हो क्या अभी? राहिल भाई अभी जी, ओ राहिल भाई जी मैं बता रहा हूँ कि जैसे औरत के सामने मर्द बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, ऐसे गंगोई नानोत्वी के सामने एकदम खामोश हो गया, भाग गया, नानोत्वी बोलती जा रही है, भाग गया, भाग गया क्या? चलिए जज़ाकल्लाह। हजरत मजा आ गया, बहुत कायदे से ठुकाई हुई है, इसकी हर लफ्ज पे ठुकाई हुई है माशाल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, दिल खुश हो गया हजरत। आज कल ये अपलोड होगी हजरत इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। हजरत हमें रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, शायद हमारे पास ना हुई हो। हाँ देख लेता हूँ। ठीक है हजरत, अब आप आराम करिए। अस्सलाम वालेकुम।